So let me briefly introduce Mr. Gupta ji. We have already done this last time. He comes with a deep understanding of Vedic, Sanatan, Hindu philosophy, scriptures, and religious literature and practices. And today's subject, universal consciousness, is the ultimate understanding of our Sanatan Dharma and philosophy. We all try to go to universal consciousness from individual consciousness. Even to be in individual consciousness is a struggle. I think Gupta ji will talk about it. So, without going much into details, I request Dr. Gupta ji, you please begin your presentation, Dr. Gupta ji. Uh, uh, I would not spend time on talking about this subject because we have in our introductory note we have said what is universal consciousness, and that is the central concept of Sanatan Dharma, yeah, which is often expressed as Brahman or Atman. Brahman is the ultimate, unchanging reality or cosmic consciousness, the source and essence of everything in the universe. It is formless, limitless, and beyond dualities. Let me not spend more time on this because we have Dr. Gupta ji to speak on this today. So I request Dr. Gupta ji to please begin his presentation. Thank you, Ramesh Bhai Sahab. Yeah. I'm really grateful to you for having invited me next time again. And I do welcome all the friends who have joined earlier also. And probably I find a different bunch of attendants. I welcome you all. And I would like to acknowledge the few of my friends from India who have joined on our request. Brigadier Luktuke, he has joined earlier also, and this time again he has obliged us. This time, one of my friends, Professor Dashora, he has also joined. Damodar Daniji has joined. Ravikant Bajaj has joined. Shri K.K. Mittal, Shri S.K. Sharma, Anil Kakkar, and my dear friend Dr. Anil Bhate. I am grateful to all, and I would like to deal with the subject which I have been expected to. It is Sanatan Dharma and universal consciousness. Last time when we had discussed, this was discussed about what the Sanatan Dharma is, what could be its philosophy, what could be its connotations. I think I had only tried to deal with the subject in quite a sufficient detail. And today, what we are talking about is, say, about universal consciousness. So, as requested again, I would like to discuss with you all in my own native language. And with your permission, I would now speak in Hindi, please. बंधुओं, जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, दो बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभर के हमारे सामने आती है। एक हमारा इनर कंसाइंस होता है। कंसाइंस का मतलब है पर्सनल मॉरल सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट फेयरली मीन्स इन ऑल फेयरनेस। तो जब कोई भी बात किसी से पूछते हैं तो उसको पूछते हैं, डज इट is it allowed by your conscience also? Does it meet your conscience? It means one has to be very truthful if he says yes. And if somebody is conscious, conscious means aware and responding to own surroundings. So by all means, if we talk of consciousness, it is a state of being conscious that is aware of what is the moral sense of right and wrong. अब हमको बात करनी है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की।
जब यूनिवर्सल शब्द को थोड़ा सा एनालाइज करें, इसके अंदर में दो सिलेबल हैं, एक है यूनि, एक है वर्स। यूनि का मतलब है यूनिफॉर्म, एक जैसी, और वर्स को बोलते हैं जिसके अंदर में राइटिंग विच एंड्स विद रिदम। तो सामान्यतः हम किसी भी कविता को वर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स का अर्थ है कि सारे सृष्टि के अंदर में जो एक काव्य हो, एक ऐसी कविता हो, क्योंकि प्रकृति स्वयं में भी एक कविता है और ईश्वर का बनाया हुआ ये काव्य है। पिछले व्याख्यान में मैंने संकेत किया था, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। शास्त्रों में एक जगह ये संकेत किया गया है कि देवों के काव्य को देखो। देवों का काव्य क्या है? जितने भी ये जड़ देवता हैं, प्रकृति के पंचभूत तत्व, इन पांचों को हम देवता की श्रेणी में लाते हैं। ये सनातन देव। इसके अतिरिक्त फिर प्राणी जगत में हमारे संबंधों के आधार पर हमने कुछ लोगों को देवता की श्रेणी में रखा। तो यहाँ पर जो ये शास्त्र की उक्ति है, इसके अंदर में उन पंचभूत तत्वों की बात है जिनको हम जड़ देवता कहेंगे। आकाश है, जल है, वायु है, पृथ्वी, अग्नि। इनका जो काव्य है, काव्य का मतलब यह है कि एक रिदम में चलते हैं ये। इनका अपना एक निश्चित धर्म है, उस धर्म को ये कभी छोड़ते नहीं। वायु अपना धर्म निभाती है, जल अपना धर्म निभाता है, अग्नि अपना धर्म निभाती है, पृथ्वी का अपना धर्म है। सबसे ज्यादा जो सहनशील दुनिया में कोई वस्तु हो सकती है तो उसकी उपमा पृथ्वी से देते हैं, और इसीलिए पृथ्वी को माता भी कहा है, क्योंकि हमारे प्राणी जगत में ही जो मातृशक्ति है, सबसे ज्यादा सहन शक्ति ईश्वर ने उसी को दी है। वो प्राणी के जन्म के समय भी सबसे ज्यादा सहन करती है कष्ट को, और जीवन भर पालन पोषण में, और जब जीवन में कोई कटु अनुभव होते हैं उसको भी सहन करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। इसलिए उसको पृथ्वी को पृथ्वी माता कहा जाता है। तो जो हमारे ये देवता हैं, इन देवताओं का जो एक रिदमिक बिहेवियर है, उसको एक काव्य की संज्ञा दी गई है। और ये आगे बोला गया, न ममार न जीर्यति। ना तो ये कभी कमजोर होता है, ना कभी ये जरावस्था को प्राप्त होता है। इसका मैंने पिछले व्याख्यान में पर्याप्त संकेत भी दिया था कि सनातन जो हमारे प्रकृति के तत्व हैं, ये अनादि भी हैं, अनंत भी हैं। इसलिए ना कोई इनको उत्पन्न कर सकता है, ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की सामर्थ्य नहीं है, और इनको विनष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। हम मनुष्यों में कई दफा हम बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ सब समाप्त कर दिया है। बंधुओं, ये हमारी अज्ञानता है। समाप्त कुछ नहीं होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपने प्रकृति में अपने कर्मों के कारण कुछ ना कुछ उनके रूप परिवर्तन भी करते हैं, और जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं अपने वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, उसको भी मैंने स्पष्ट किया था कि हम पोल्यूट नहीं करते। तो हम लोग इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते का मतलब यह है कि हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि पानी की इस दुनिया के अंदर में इतनी कमी हम लोगों ने कर दी है, तब भी हमको यही कहना पड़ेगा कि पानी का जो टोटल वॉल्यूम है वो पृथ्वी के अंदर आज भी उतना ही है जितना कभी सृष्टि के आदिकाल में बनाया गया होगा। हाँ, उसको हमने इस हालत में कर दिया कि वो पोर्टेबल नहीं रहा, ड्रिंकेबल नहीं रहा। तो सृष्टि के अंदर में जो ये देवों का काव्य है, इसको हम देखते हैं, ना ममार ने जीर्यति। तो ये एक प्रकार का यूनिवर्स है कि सारी सृष्टि के अंदर एक है। और मैंने एक पासिंग रेफरेंस ये भी दिया था कि नासा ने भी इस बात को अपनी तरफ से ये डिक्लेयर किया है कि सूर्य के चारों तरफ एक साउंड है जो हमिंग नॉइज है, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। और बहुत सूक्ष्म उन्होंने उसका जब अध्ययन किया तो वो ओम का नाद उनको, जिसको हम प्रणव ध्वनि बोलते हैं। तो हमने ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम जो ओम रखा है वो बिना कारण के नहीं है। वेदों में ये पहले से इस बात की चर्चा है। नासा ने उसकी केवल पुष्टि की है, कोई नई बात खोज के नहीं निकाली है। पर जो बात वेदों में लिखी थी उन्होंने उसको कोरबोरेट किया है, उसको कंफर्म किया। तो यूनिवर्स का मतलब यही हो गया कि सारी दुनिया में जिसको एक तरीके से देखा जाए और एक तरीके से व्यवहार किया जाए, तो फिर ये वो हमारी कॉन्शियसनेस से सीधा सीधा कोरिलेट होता है।
सनातन की बात जब कर रहे हैं तो सनातन का तो मतलब ही इतना बताया गया कि सनातन वही है जो सृष्टि के आदि काल में ईश्वर ने बनाया। तो सनातन का जब शब्द बनता है तो सनातन के लिए मुझे बार बार इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं। ये बात पिछली बार बड़े स्पष्ट हो चुकी कि हमने सनातन केवल उसी को माना है जो ईश्वर ने बनाया है, और उसके बाद में जो मनुष्य ने बनाया है वो और कुछ भी हो सकता है, वो सनातन नहीं हो सकता। और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि धर्म केवल सनातन ही होता है। अन्य जो बनाए हुए हैं फिर वो धर्म की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, वो मत होते हैं या पंथ होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिलीजन भी बोलते हैं, बिलीफ भी बोल सकते हैं, और जो लोग उर्दू में बोलते हैं उसको मजहब कहते हैं। और बाकी सब लोग जो हैं हमारे यहाँ कई दफे पौराणिक जगत में बहुत से हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि ये मेरी आस्था का प्रश्न है, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास वो आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। आस्था आस्था भी है तो वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है। तो जो आपकी व्यक्तिगत आस्था है वो आज कुछ है, कल बदल भी सकती है। आपका मत भी आज कुछ है, कल को कुछ और हो सकता है। तो जो परिवर्तनीय है वो आपका व्यक्तिगत है, इसलिए वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। तो इसलिए केवल और केवल धर्म जब हम शब्द का प्रयोग करें तो इस बात का स्पष्ट ध्यान रखें कि हम फिर मत पंथ की बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने एक बड़ा विनम्र अनुरोध भी किया था अपने सभी उपस्थित बंधुओं से कि जब हम ये बोलते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि सर्वधर्म नहीं होते हैं, धर्म तो केवल एक ही होता है, संपूर्ण मनुष्य जाति का, और वो मानवता धर्म। इसलिए बाकी जो सर्वधर्म हम करके बोलते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर मत पंथ का एक व्यक्ति बुला के बिठाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि ये सर्वधर्म के लोग आ गए हैं, ये ईसाई मत के हैं। ईसाई धर्म का बोलते हैं हम तो, पर है तो वो ईसाई मत। ये इस्लाम से आए हैं, ये जैन समाज से आए हैं, ये सिख समाज से आए हैं, ये बौद्ध समाज से आए हैं, ये कोई हिंदू से आए हैं, ये आर्य समाज से आए हैं। बंधुओं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इट्स मिसनोमर। सब अपने अपने मत और पंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। धर्म का प्रतिनिधित्व अगर करना है तो इतने लोगों को बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म योनिगत होता है, और योनि का अर्थ है मनुष्य योनि। जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी अपनी योनियां हैं। इसका भी मैंने संकेत किया था, केवल एक बार से स्मरण करा रहा हूँ। हमारे यहाँ तो कहा जाता है हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, कि 84 लाख योनियां ईश्वर ने बनाई हैं। ना हमें गिनने की आवश्यकता है, ना हमने किसी ने गिनी है, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि असंख्य है। और इसके अंदर में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जितनी भी योनियां हैं उतनी ही जातियां हैं। पिछली बार मुझे ध्यान है एक सज्जन ने इसके बारे में भी चर्चा की थी, हो सकता है प्रोफेसर डॉक्टर अनिल भाटिन ने कहा हो कि जाति क्या होती है, वर्ण क्या होता है, कुल क्या होता है। इसके बारे में भी चर्चा किया जाए। आज का तो हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन जाति के विषय में मैं स्पष्ट जरूर करना चाहता हूँ कि जाति योनिगत होती है। तो जो जिस योनि का होता है उसका अपना एक योनिगत धर्म होता है। तो सारे मनुष्यों की सृष्टि के अंदर एक जाति है, उनकी मानव योनि होने के नाते। और जब उनकी एक जाति है तो उनका धर्म भी एक ही है, और वो धर्म केवल मानवता है। और जो मानवता धर्म है ईश्वर का बनाया हुआ है, क्योंकि मनुष्य बनाया है तो उसने साथ में धर्म दिया है, तो वही धर्म उसका सनातन धर्म है। अगर हमारा इन बेसिक फंडामेंटल्स पे क्लैरिटी हो जाए ना तो फिर बहुत कुछ समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाएंगी। हमारे सबके मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के समाधान हम ढूंढने के लिए बहुत से विद्वानों पे, धर्माचार्यों पे जाते रहते हैं। और बात हम जाके यही करते हैं कि हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न धर्मों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, इसी प्रसंग में मैं बड़ा जोर दे के फिर कहना चाहता हूँ कि विभिन्न धर्मों की बात करना ये अज्ञानता का सूचक है। तो सनातन धर्म के बारे में दो बात पहले भी बताई थी कि वो सबसे सरल होता। हम लोगों ने उसको अपनी विद्वत्ता के आधार पर अपने अपने मतों को थोपने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए क्लिष्ट बनाना शुरू कर दिया। और जब हर आदमी ने अपना एक प्रोडक्ट अलग बनाना है तो उस प्रोडक्ट को क्वालिफाई भी करता है, और उसकी मार्केटिंग के लिए ऐसी ब्रांडिंग करता है कि वो ये बताने का भी प्रयास करता है कि मेरे इस प्रोडक्ट में बाकी लोगों से
प्रोडक्ट में क्या, इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें क्या वो है, इट इज एन एज ओवर अदर्स। यही हमारे यहाँ मत और पंथ की स्थिति है। कोई भी व्यक्ति एक मत और पंथ बनाता है कल्याण की दृष्टि से, दूसरा कोई विद्वान आता है, महापुरुष आया, उसने अपना मत बनाया तो ये बताने का प्रयास किया कि मेरा मत जो है वो पहले मतों से श्रेष्ठ है। जहाँ श्रेष्ठता की डिग्रियां हो, आपस में तुलनात्मक अध्ययन हो, इसका मतलब यह है कि वहाँ डिबेट भी संभव है। और जो डिबेटेबल है वो धर्म नहीं है, वो और कुछ भी हो सकता है। तो बार बार जो घड़ी की सुई है वो एक ही और इंडिकेट कर रही है। मैं जानता हूं कि मैं ये कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं कि जितनी बार कील के ऊपर चोट लगाई जाएगी तो स्वाभाविक है वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं दीवार के अंदर जाएगी जरूर। और ये चूंकि प्रश्न इतना गहरा है कि इस भ्रम के कारण ही दुनिया के अंदर आज इतने विवाद हैं, इतने संघर्ष हैं। और संघर्ष भी साधारण संघर्ष नहीं है, खूनी संघर्ष है। स्थिति ये हो गई है कि मानव नहीं रह गया, दानव हो गया है। और उस स्थिति को आजकल, अगर आज सब हम सब लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आजकल देखिए ना हमारे ही विश्व के अंदर में क्या स्थिति पैदा हो गई। स्थिति ये पैदा हो गई है कि ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वार होने वाली है। और वर्ल्ड वार का अर्थ क्या है कि जिसको हम प्रलय बोलते हैं, कि सृष्टि का विनाश हो सकता है। किस कारणों से है, उसका कारण स्पष्ट क्या है, वही कारण है। हम गल्फ कंट्रीज के अंदर में यहूदी जो एक पंथ है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक देश है वो इजराइल। इस्लाम जो पंथ है उसका एक पैलेस्टीन है, जिसके अंदर में हमास जैसा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपस में क्या बैर हो सकता है? लोग कहते हैं भूमि का युद्ध है, भूमि का युद्ध नहीं है। युद्ध केवल आइडियोलॉजिकल वार है। इस्लाम है वो यहूदी को सहन नहीं कर सकता, यहूदी अपने को आत्मरक्षा के लिए उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सकता। और उसके लिए क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पिछले गत 2 महीने से क्या स्थिति बनी हुई है। व्यक्ति व्यक्ति के खून का प्यासा है। कहने को वो दोनों अब्राहमिक रिलीजन के पार्ट हैं। अब्राहमिक रिलीजन में 3 ही रिलीजन हैं, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइश है और इस्लाम है। लेकिन एक ही फादर के, एक ही अब्राहम फादर के संतान होके भी उन तीनों के अंदर में इतना भयंकर विद्वेष और विद्रोह है कि वो एक दूसरे की खून के प्यासे हैं। और इन तीनों के अलावा जितना दुनिया में है वो तो उनके हिसाब से या तो काफिर हैं या इनफाइडल्स हैं। उनके साथ तो उनकी शत्रुता का व्यवहार एक बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। रूस और यूक्रेन, उनका युद्ध तो भूमि का हो सकता है, लेकिन क्या स्थिति है, दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उसके बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। उसके लड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि ये सभी लोग सनातन धर्म से दूर हैं। और ईश्वर की ये कृपा है कि सनातन धर्म की बात आरंभ भी भारत से हुई है, और उसका अगर आज थोड़ा बहुत व्यवहार में कहीं प्रचलन दिखता है तो वो भी केवल भारतवर्ष एक एकमात्र ऐसा देश है जो आर्यों का देश रहा है। और उस आर्यों के देश में ये सनातन धर्म सृष्टि के आदिकाल से, जब से आर्य जाति इस देश के अंदर रही और सभ्य हुई है, उस समय से ये सनातन धर्म की पालना हमारे देश में होती आई। हम त्रेता युग में श्री राम को स्मरण करते हैं। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आया, द्वापर के बाद में आज कलिकाल चल रहा। इन तीनों में अंतर क्या आया है? अंतर केवल क्वालिटेटिव डिफरेंस है। त्रेता युग वो युग था जिसके अंदर में सनातन वैदिक धर्म का जीवन के अंदर में सब प्रकार से हमको स्पष्टीकरण दिखता। उस समय का हर व्यक्ति, जन सामान्य भी अपने जीवन में वैदिक मान्यताओं के ऊपर चलता था। और इसीलिए वो त्रेता युग था जिसके अंदर रामायण जैसा एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने मिलता है कि भाई भाई के लिए प्राण देने को तैयार है। और उसके बाद क्या स्थिति हुई, वही सनातन धर्म का इतना विकृत स्वरूप बना महाभारत में आते आते द्वापर काल में, कि हमारे वहां पर जितने कौरवों के दरबार में बड़े बड़े लोग महापुरुष बैठे हैं, भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी हैं और धृतराष्ट्र भी हैं, और मालूम नहीं कौन कौन है, कर्ण भी वहीं पर है, पांडव भी हैं, उनके यहाँ पे गए हुए द्यूत खेलने के लिए। पर विडंबना क्या है, धर्म सब जानते हैं,
लेकिन सबने अपनी अपनी धर्म की व्यक्तिगत परिभाषाएं बनाई हुई। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत धर्म है। तो आज मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये धर्म है जिसको हम सनातन धर्म कह रहे हैं, ये 5 प्रकार का होता है। पंचधा इसको बोलते हैं। इसके 5 फेसेट्स हैं, 5 एस्पेक्ट्स हैं। एक मेरा व्यक्तिगत धर्म होता है, मेरे स्वयं के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक मेरा पारिवारिक धर्म होता है। अगर मेरा पारिवारिक धर्म मुझसे किसी बात की अपेक्षा करता है जिसके अंदर मेरी व्यक्तिगत रूप से हानि भी हो सकती है, तो पारिवारिक धर्म को मानना ये हमारी सनातन परंपरा है। हम अपने व्यक्तिगत धर्म की तिलांजलि देके पारिवारिक धर्म को निभाएं, ये मनुष्य से अपेक्षा होती है। इसके बाद भी जो तीसरा टीयर है वो हमारे समाज धर्म होता है। एक मनुष्य का जिस समाज का वो घटक है, उस समाज के हानि लाभ को सबसे पहले देखते हुए कि समाज की हानि तो नहीं इससे होनी है, तो फिर समाज की हानि अगर किसी भी कारण से होती है तो परिवार के धर्म की भी बलि चढ़ाई जा सकती है। वो उसके ऊपर में प्रिवेल करता है, सुपरसीड करता है। फिर इस समाज धर्म के ऊपर में हमारा राष्ट्र धर्म होता है। इसका अर्थ यह है कि नेशन फर्स्ट, मेरे देश के हित के लिए जो होना है उसके लिए फिर ना मुझे व्यक्तिगत धर्म की अपेक्षा है, ना मेरा पारिवारिक धर्म आड़े आना चाहिए, ना मेरा समाज धर्म आना चाहिए। अगर जो कुछ आना चाहिए वो राष्ट्र धर्म आना चाहिए। और इससे भी ऊपर में अगर कोई बात आती है तो उसको हम वैश्विक धर्म बोलते हैं। और इस वैश्विक धर्म को ही बंधुओं हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहेंगे। तो आज का जो विषय है उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने इन धर्म के 5 प्रकार को बताया। धर्म को बहुत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आज हम 2-3 चीजों से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार ये बताया गया था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। मैंने ये भी कहा था कि मैं इसकी आज विस्तार में चर्चा इस व्याख्यान में नहीं करूंगा, इसको फिर अगली बार कभी संभव हुआ तो लूंगा। आज वो अवसर आया है। तो हमारे यहाँ पे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति में इसका बड़ा स्पष्ट जो है ना इसका उल्लेख है। तो जिस सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं उस सनातन धर्म के अंदर में 10 लक्षण बताए। इन लक्षणों से सामान्यतः आप सभी लोग परिचित हैं, मुझे उसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं संक्षेप में उसका आपके सामने जरूर थोड़ा सा वर्गीकरण करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने कहा है धृति। धैर्य जो है ये जीवन का सबसे पहला लक्षण है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है वो धार्मिक नहीं होता। और इस धैर्य के हमको अपने महापुरुषों में तो यथेष्ट वो मिलते हैं। श्री राम के जीवन में तो इतने उदाहरण मिलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। राज्याभिषेक के बजाय उनका वनवास हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इतने वीतराग गए, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, बहुत धैर्य है। और जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं, माता पिता को भी उसी प्रकार सम्मान दे रहे हैं और अपने भाई लक्ष्मण को भी शांत कर रहे हैं कि नहीं, ये विद्रोह का समय नहीं है, विचलित होने का नहीं है। पिता की आज्ञा मानना ये पुत्र का धर्म है और मैं उस धर्म के नाते इस वनवास को बड़ा सहज स्वीकार करता हूँ। और धैर्य इतना है कि माँ कौशल्या को जाके ये बता रहे हैं, पिता देहि मोहि कानन राजू। शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पिता ने वनवास दिया है। कितनी पॉजिटिविटी है उनके व्याख्यान में, उनके एक वक्तव्य में कह रहे हैं कि माँ, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। कानन, कानन कहते हैं वन को। पिता देहि मोहि कानन राजू। उन्होंने मुझे ये खाली अयोध्या की गद्दी नहीं, मुझे सारा का सारा जितना भी वन्य प्रदेश है उसका राजा बना दिया। यह है धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण, अनुपम। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे, पर यह धर्म के लक्षण का सबसे पहला लक्षण। इसके बाद में क्षमा। मनुष्य को क्षमाशील होना ये मनुष्य का पहला कर्तव्य बनता है। और जब व्यक्ति क्षमाशील होता है तो वो स्वयं भी शांति से रहता है और जिस व्यक्ति ने उसके प्रति अपराध किया है उसको क्षमा करके उसको आत्मग्लानि होने का अपना एक अवसर देता है। और सामान्यतः ये देखा गया है कि जो पहला कोई व्यक्ति क्षमा करने की पहल करता है तो जो अपराधी है वो स्वतः, सामान्यतः, ये सदाचारी व्यक्तियों की बात कह रहा हूँ, दुराचारी व्यक्ति को तो क्षमा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी घटना हो चुकी है। हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 13 बार क्षमा किया।
और 14वीं बार जब वो मोहम्मद गौरी जीत गया तो वो उस क्षमा के उसको भूल गया, उसके अंदर में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं था, बहुत ज्यादा एहसान फरामोशी थी, जिसको बोलते हैं अनग्रेटफुलनेस। 14वीं बार जीतने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति की बात की क्षमा नहीं है, इसलिए वो मनुष्य नहीं था, मानव नहीं था, दानव था। हम तो मानवों की बात कर रहे हैं। क्षमा के बाद है दम। दम कहते हैं तपस्या को। जो व्यक्ति दूसरे के थोड़े से अपने सुख के लिए किसी को कितना भी कष्ट दे सकता हो, वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी वो है जो समाज के कल्याण के लिए दधी जी के रूप में अपनी अस्थियों का भी दान कर देता। तो तपस्या के जो लक्षण हैं ये भी हमारे धर्म का लक्षण है। अस्तेयम। अस्तेयम का अर्थ है कि किसी के भी संपत्ति के ऊपर में, किसी की वस्तु के ऊपर में किसी भी प्रकार का गिद्ध दृष्टि न रखना। उसके लिए हमारे यहाँ ईशोपनिषद में एक मंत्र है जो स्पष्ट करता है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। इसका जो ये अंतिम अंश है बस वो हमारे लिए प्रासंगिक है। माँ गृध कस्य स्विद्धनम। किसी के भी धन पर कभी भी किसी प्रकार से गृध्र दृष्टि न रखे। जो व्यक्ति किसी दूसरे के हिस्से की चीज अपने बलात्कार कर लेता है वो एक प्रकार से चोरी करता है। और अष्टेय का मतलब है चोरी ना करना। तो अनावश्यक वस्तुओं का जो संग्रह है वो भी अष्टेय की श्रेणी में नहीं आता, वो भी स्तेन है। जैन समाज में इसके लिए बहुत बल दिया गया है। उसके अंदर ये कहा गया कि अपनी आवश्यकता से अधिक आप किसी का भी अगर संग्रह करते हैं, हो सकता है पैसे तो आपके हैं जो आपने खर्च करके संग्रह कर लिया, लेकिन जो राष्ट्र के साधन है और समाज में जो व्यक्ति उस प्रकार का अपने पास साधन नहीं रखते उनको तुमने वंचित किया। और सामान्यतः ऐसा कभी भी हम जब देखते हैं, कभी भी कोई स्कैरसिटी होती है किसी रिसोर्सेज की, तो लोग उस समय ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, बहुत से लोग होर्डिंग करना शुरू करते हैं। ये क्या होता है? ये एक प्रकार से अस्तेय की अवहेलना होती है। मनी बिलोंग्स टू यू बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं पैसे खर्च करके कितना भी खरीद सकता हूँ, ये एक सामाजिक अपराध है। तो इसको इन्होंने कहा है कि धर्म का ये लक्षण है अस्तेय। उसके बाद में है शौचम, पवित्रता, शुद्धता। हर व्यक्ति की आत्मा शुद्ध भी होती है, बुद्ध भी होती है, पवित्र भी होती है, लेकिन आत्मा की आवाज को सुनने का स्वभाव होना चाहिए। आत्मा की आवाज को सुनने का स्वभाव है तो आपके व्यवहार में शुचिता होगी। आपके व्यवहार में शुचिता होगी, आपके व्यवहार में भी और आहार में भी और सब प्रकार के विचारों में भी शुचिता होगी। और वो केवल कब होगी? कि जब आप अपनी शुद्ध, बुद्ध और पवित्र आत्मा को सुनने का अभ्यास रखते होंगे। मैंने शायद पिछली बार भी चर्चा की थी कि कई दफे क्या होता है, घर में एक भौतिक उदाहरण दीजिए। हमारी जो बड़ी पीढ़ी है वो अपनी छोटी पीढ़ी को कोई ना कोई एक सलाह देना अपना कर्तव्य मानती है। घर के बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, अपने संतान को सलाह देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो सलाह देने की इच्छा कब तक रखेंगे? जब तक वो सुनने का स्वभाव रखते हैं। जिस दिन उनको मालूम हो जाए कि नई पीढ़ी हमारी सुनने की इच्छा नहीं रखती है, सुनने का स्वभाव नहीं रखती है, तो माता पिता बोलना बंद कर देते हैं। बस यही स्थिति हमारी आत्मा की है। आत्मा को हम सुनते रहते हैं तो आत्मा बोलती रहती है। हम आत्मा की सुनना बंद करते हैं तो आत्मा बोलना बंद करती है। तो स्वभाव की शुचिता है वो केवल जब तक है जब मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनता हूँ। इंद्रिय निग्रह। पिछली बार भी एक सज्जन ने ये प्रश्न किया था कि हम इंद्रियातीत होके किसी भी प्रकार से जन उस कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने उसमें ये निवेदन किया था कि जब इंद्रियां हमारे पास हैं तो इंद्रियों का ये धर्म है कि वो अपने अपने जो उनके धर्म है उसके अनुसार वो इच्छाएं रखें। इसलिए मानव जीवन में तो इंद्रियातीत होना एक असंभव सी प्रक्रिया है, लेकिन इंद्रिय का निग्रह तो कर सकते हैं हम। इंद्रिय का निग्रह का मतलब यह है कि किसी जैसे घोड़ा के ऊपर में एक आदमी घुड़सवार बैठा है, तो घोड़ा तो चंचल है, लेकिन अगर वो घुड़सवार कुशल है तो वो एक सब प्रकार से उसको अपने कंट्रोल में रखता है, उसकी लगाम खींच के रखता है। इसी प्रकार से हम अपनी दसों इंद्रियों की लगाम को अगर खींच के अपने नियंत्रण में रखते हैं तो उसको हम इंद्रिय निग्रह कहते हैं। फिर हमारे से एक भी व्यवहार ऐसा नहीं होता जो किसी भी प्रकार से धर्म के विपरीत हो, जिसको हम अधर्म का आचरण कहते हैं।
तो ये इंद्रिय निग्रह, ये भी हमारे धर्म का लक्षण है। धीर विद्या, धी कहते हैं बुद्धि को। मेरे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं विवेक मेरे में हो, मैं उचित और अनुचित का किसी भी प्रकार से चुनाव कर सकूं, जिसको अभी मैंने कॉन्शियसनेस कहा है। कि जो व्यक्ति कॉन्शियस होगा तो उसको राइट एंड रॉन्ग की उसके अंदर में एक नेचुरल वो होगी कैपेसिटी जानने की, और यही उसकी कंसाइंस है। तो ये जो धी है, इसके साथ में उन्होंने लिखा है विद्या। विद्या क्या है? जितना मेरे को एक सामान्य ज्ञान लेके मैं अपने जीवन में उत्पन्न हुआ हूँ, उसके बाद में अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, जिस बुद्धि का मैंने लक्षण के रूप में आपके सामने अभी चर्चा की है, उसका प्रयोग करके मैं इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत करूं, इसको ऐसा बनाऊं कि ये अंततः मेरे लिए भी और समाज के लिए और देश के लिए, विश्व के लिए भी कल्याणकारी हो। इतनी मेरे पास विद्या होनी चाहिए, मुझे सत्य का ज्ञान करने की एक मन में इच्छा होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है? सत्यम। जिस सत्य की मैंने बात कही है कि आपके पास विद्या किस लिए हो, कि सत्य को जानने की इच्छा हो। और फिर अक्रोध, अनाकारण बिना कारण के जो क्रोध करता है, वो व्यक्ति अपना तो विनाश करता ही है, बल्कि कहा यह जाता है कि जो क्रोधी व्यक्ति है वो अपना विनाश पहले करता है। जिसके ऊपर उसे क्रोध उतारना है, उसका विनाश तो बाद में होता है। उसका अपना खून पहले जल लिया होता है, जब तक वो उस क्रोध को प्रदर्शन करना है उससे पहले स्वयं बहुत दंड स्वरूप वो कष्ट खुद पा लेता। तो मैंने बंधुओं आपके सामने ये जो 10 लक्षण की बात की है, आप जरा देखिए कि मानवता के लिए, मानवता धर्म को निभाने के लिए इनके अतिरिक्त क्या किसी और लक्षण की आवश्यकता है? निश्चित मानिए कि इन 10 के अंदर में संपूर्ण मानवता के धर्म की परिभाषा इस प्रकार से है कि अगर एक भी व्यक्ति इन सारे धर्मों पर खरा उतरता है तो वो युग पुरुष की श्रेणी में आता है। हम इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं तो श्री राम के जीवन में देखते हैं। श्री राम एक प्रकार से धर्मावतार थे। धर्म के 10 लक्षण उनके व्यवहार में घटित होते हैं। कल एक अन्य प्लेटफॉर्म पे मैंने इसी के बारे में, रामायण के प्रेरक प्रसंग के बारे में चर्चा करते हुए बताने का प्रयास भी किया था, जितने भी श्रोता बंधु थे, कि एकमात्र हमको इतिहास में श्री राम ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं कि जो धर्म के दसों लक्षणों पे खरे उतरते हैं। अन्य अन्य व्यक्तियों की हम चर्चा करेंगे तो किसी कोई एक लक्षण में च्युति होगी, किसी की दो में होगी। और सामान्यतः आप और हम अगर गृहस्थी लोग हैं, हमारा अगर आकलन किया जाए, हम सेल्फ असेसमेंट भी करें, तो हो सकता है 5 या 6 से ज्यादा नंबर हमारे 10 में से नहीं आएंगे। लेकिन एक और बड़ी विचित्र बात है जो हमारे आज के व्याख्यान के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, सनातन धर्म की। ये धर्म के 10 लक्षणों में 9 के बारे में तो हमारी सहमति बन जाती है, लेकिन ये जो 10वां लक्षण है सत्य, बस इसी के बारे में कभी भी सहमति नहीं बनती। हर व्यक्ति ये तो कहने का प्रयास करता है कि मैं सत्य जानने की इच्छा रखता हूं। और इसका एक बहुत ही स्थूल उदाहरण अगर हम देखें तो जितने हमारे ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, भारत में भी और जगह भी, देशों में कई कई टीयर के वो हैं कोर्ट्स। हम अपने यहाँ पे भारत में देखते हैं लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट है। क्या है इन कोर्ट में? केवल और केवल यह है कि सत्य के आधार पर न्याय दिया जाए। और ये बात हम निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से जब वहां पर किसी भी तरह का कोई एविडेंस या गवाही जिसको कहते हैं लेनी होती है, तो क्या करते हैं? एक धर्म ग्रंथ के ऊपर में उसका हाथ रखवाते हैं। ईसाई है तो बाइबल पे हाथ रखवाते हैं, मुसलमान है तो कुरान पे रखवाते हैं, हिंदू है तो गीता पे रखवाते हैं। और उससे क्या कहते हैं कि मैं केवल सत्य कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहूंगा। बंधुओं, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, जानता हूँ कि सत्य तो कोई नहीं कहता है। हाँ, जिस धर्म ग्रंथ पे उन लोगों ने हाथ रख के कसम खाई है, वो इतना गंदा हो गया है कि उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाना भी अपने आप में एक बहुत ही गंदी प्रक्रिया। गीता बिगड़ गई है, कुरान का बिगड़ गया है, बाइबल गंदी हो गई है, लेकिन उन लोगों का स्वभाव गंदा नहीं हुआ। और यही कारण है कि लोअर कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाती, तो हाई कोर्ट को देखना होता है, वहां भी न्याय नहीं मिलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को, और वहां भी न्याय नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति को भी उसकी फिर अपील होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि सत्य का अन्वेषण तो कहीं भी नहीं हुआ।
हर जगह सत्य को छिपाया गया। तो सत्य एक ऐसा विषय है कि कहने में तो हर व्यक्ति जान कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं और मैं सत्य बोलना सामने वालों को भी चाहता हूं कि मेरे साथ सत्य बोले, लेकिन व्यवहार में कितना सत्य हम बोलते हैं और कितना अन्य व्यक्ति हमारे साथ बोलते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता है। तो आज की जो मानवता की हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही कारण है कि जितने हमारे धर्म के अतिरिक्त मत और पंथ हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई भी मत पंथ जो है वो 100% सत्य हो सकता है? सत्य का केवल आवरण लेके हम केवल वेदों का नाम लेके अन्य अन्य ग्रंथों की रचना करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वेद का जरा सा फुट डालते हैं। जैसे कोई भौतिक शब्दों में ये कहे कि हम रसोई के अंदर में देसी घी की अपनी सब सारा भोजन बनाते हैं, तो क्या सारा का सारा पूरा ही देसी घी प्रयोग करते हैं? थोड़ा सा उसके अंदर में फ्लेवर आ गया, जरा सी उसके अंदर में हमको लगा कि हाँ इसकी वो आ रही है खुशबू, तो हम ये कहने के लिए पर्याप्त अपने में सामर्थ्य पाते हैं कि हम ये देसी घी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यता नहीं करते। और यही हमारे धर्म के साथ में एक बहुत बड़ी विकृति है। हर व्यक्ति ने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ माना है। जब अपना धर्म श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यों के धर्म को निकृष्ट माना जा सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि ये सत्य पे न वो है न सत्य पे वो है जिनसे तुलना की जा रही है। अगर धर्म है तो वो केवल और केवल सत्य होगा, और सत्य होगा तो डिबेटेबल नहीं होगा, और डिबेटेबल नहीं है तो उसमें दो मत नहीं हो सकते, और जिसके अंदर दो मत हो सकते हैं वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। दो और दो को कोई कहे कि चार तो ठीक है, लेकिन अगर 4.25 कहा तो चलो नजदीक तो है, तो बंधुओं सत्य तो नहीं रहा। तो मैं इस बात का बड़ा जोर दे के ये बताना चाहता हूं कि जब ये लक्षणों की बात आती है तो 9 लक्षण पे तो दुनिया सहमत हो जाती है, लेकिन जब सत्य की बात आती है तो लोग फिर उसके अंदर में एक्सक्यूज ढूंढते हैं, और जिसको बोलते हैं ना लुकिंग अदर वे। आज इसके सनातन धर्म के जो मनुष्य जाति के लिए लक्षण बताए गए हैं, इसके बाद में मैं थोड़ा सा मतांतर हमारे यहाँ पे किस प्रकार से हुए, और ये हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस किस प्रकार से तार तार हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रासंगिक विषय बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे समय का प्रवाह हुआ, तो अलग अलग दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रदेश हैं, उनके अंदर में अपने अपने कस्टम, अपने रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं धीरे धीरे बल लेने लगी, जड़ पकड़ने लगी। और जब अपनी अपनी मान्यताओं को आधार बना के बहुत से हमारे धर्माचार्य जहां जहां भी दुनिया में जिस कोने में भी हुए हैं, उन्होंने अपने अपने निजी मतों का आग्रह करते हुए बहुत ग्रंथों की रचना की। हमारे जितने भी पुराण हैं, मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, 18 पुराण तो हम जानते हैं, 108 पुराणों की हम लोगों को जानकारी है कि इतने हैं, और भी हो सकते हैं। जब भी जिस व्यक्ति को कोई भी एक विषय ऐसा लगा कि इस विषय के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उन्होंने धर्म के उसी एक विषय को पकड़ के और उसके साथ में अपना एक मत जो है वो बना दिया। तो मत भी बनते गए, और मत के बाद जब अन्य मत बनते गए तो मतांतर होते चले गए। मतांतर का मतलब है एक मत का दूसरे मत से अंतर। स्थिति यहां तक आई, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, कि हमारे यहाँ पे एक बौद्ध मत की स्थापना हुई। बौद्ध मत का बहुत प्रचार हुआ, लेकिन स्थिति क्या आई, उन्होंने वेदों को अमान्य कर दिया। उनको ये बताया गया, महात्मा बुद्ध को ही बताया गया कि वेदों के अंदर में पशु बलि लिखी हुई है। उनको ये बात तो बहुत असह्य लगी, क्योंकि किसी भी प्राणी की हिंसा करना एक प्रकार से अधर्म है, और महात्मा बुद्ध इस विषय में बहुत ज्यादा आग्रही थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बस इतना ही जरा सी असावधानी की, उन्होंने बजाय वेदों को पढ़ने के और सत्य को जानने के कि वेदों में क्या लिखा है, जिसमें पशु बलि का बहुत सर्वथा निषेध है, लेकिन हमारा उस समय का जो समाज है, उन्होंने वेदों के नाम पर पशु बलि देना आरंभ कर रखा था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर वेदों में पशु बलि लिखी है तो मैं इनको मानता ही नहीं। तो उन्होंने वेदों को अमान्य कर दिया और अपने 3 अलग ग्रंथ लिख दिए। उसके बाद में उन्हीं से जैसी मिलती जुलती हमारे यहाँ जैन समाज का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बौद्धों ने भी लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये नास्तिक मत जो है ये उत्पन्न हुए। उन्होंने खाली अपने तीर्थंकरों को ही ईश्वर की संज्ञा दी, आत्मा को भी अमान्य कर दिया।
तो ये सब जब इस तरह की स्थिति हो गई, तो स्थिति यहाँ तक हो गई कि किसी भी धर्म के विषय में प्रश्न करना भी हमारे यहाँ एक प्रकार का वर्जित हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, निषिद्ध हो गया। धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, कोई प्रश्न नहीं करना, ये हमारे यहाँ एक सामान्यता रूढ़ी हो। उसी स्थिति में कुछ ईश्वर की समझ लीजिए संयोग होता है या क्या होता है कि केरल में कालड़ी गांव में एक शंकराचार्य उत्पन्न हुए, जिनको हम आदि शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। कैसा अभूतपूर्व सन्यासी था वो। उस सन्यासी की स्थिति देखिए कि 8 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और वेदों का अध्ययन करके इतने पारंगत हो गए कि 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते उन्होंने बौद्ध और जैन समाज के साथ शास्त्रार्थ करके एक प्रकार से उनको परास्त कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि भारतवर्ष में से बौद्ध धर्म को एक प्रकार से निष्कासित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोना है, तो 10 वर्ष तक लगातार पैदल चले वो, और सारे देश के अंदर 4 दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, और उन मठ को स्थापित करके ईश्वर की विडंबना कहिए 32 वर्ष की आयु में मात्र उनका देहावसान भी हो गया। एक ऐसा सन्यासी, इतना प्रखर सन्यासी, जितने इतनी छोटी सी आयु के अंदर में एक ऐसी अभूतपूर्व क्रांति कर दी कि देश के अंदर जो नास्तिकता का इतना अधिक प्रचार हुआ था, उस प्रचार को एक प्रकार से देश बहाई कर दिया, और दोबारा से इस देश के अंदर में आस्तिकता का एक इतना बड़ा प्रचार हो गया कि आज भी हमारा ये धर्म भारत में सनातन धर्म के रूप में सुरक्षित दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा जो मूल विषय है उसके बारे में आने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे जब बार बार धर्म की बात करता हूं, तो उसके अंदर में एक बात बार बार उठ के सामने हमारे आती है। मैंने आपको पंचधा धर्म की बात बताई, ये रिलेटिव टर्म है। पंचधा का मतलब है कि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हमारा धर्म होना चाहिए। तो परिस्थिति में तो क्या है, व्यक्ति अगर है तो केवल अपने बारे में सोच रहा है तो व्यक्तिगत धर्म है, उसको हम वेदों में व्यष्टि की संज्ञा देते हैं। व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल, सेल्फ। और बाकी जो 4 हैं, जिसको मैंने परिवार कहा, समाज कहा, राष्ट्र कहा और विश्व धर्म, ये एक प्रकार से समष्टि है। समष्टि का मतलब है इंक्लूसिवनेस। तो एक हमारा इंडिविजुअल धर्म होता है और बाकी हमारे 4 इंक्लूसिव होते हैं, और पांचों के पांचों धर्म के ही विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के। लेकिन साथ में दूसरी बात क्या है, एक सज्जन ने पिछली बार जो मेरे से चर्चा की थी कि हमारे यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है, और उस पर स्वयं उन्होंने समाधान भी दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संभवतः श्री कुलकर्णी जी ने ये प्रश्न उठाया था, और उन्होंने ये कहा था कि वर्ण व्यवस्था जो है ये एक प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर है, और ये बात बिल्कुल सत्य कही हुई। तो हमारे यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था केवल इसलिए है कि सारा का सारा मानव समाज, हमने उसको 4 वर्णों में वेदों के अनुसार बांटा हुआ है, और मनुस्मृति ने उसके लिए बाद में कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया। वर्ण क्या है कि जो व्यक्ति जिस कर्म को करता है, तो कर्म तो असंख्य हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको 4 मोटे मोटे भागों में बांट दिया, और उसके आधार पर 4 हमने वो बना दिए वर्ण कि एक ब्राह्मण वर्ण है, एक क्षत्रिय वर्ण है, एक वैश्य वर्ण है, एक शूद्र वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या हुआ कि जो जिसका प्रोफेशन है, प्रत्येक वर्ण का अपना धर्म भी होता। अब जब ये वर्ण के धर्म की बात आती है, तो इसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करें तो समझिए कि हर कर्म का अपना धर्म होता, और कर्म के धर्म को हम कहेंगे प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल कंडक्ट। कई दफे क्या होता है, जैसे मैं एडवोकेट हूं, मेरे बहुत से एडवोकेट फ्रेंड भी होंगे, और किसी ने मजाक में ये कहा है कि अगर किसी अपराधी के साथ में अपराध करने में आप उसका साथ देते हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि आप उसके एकम्प्लिस हैं। लेकिन उसी अपराधी का बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आप उसका बचाव करते हैं, तो फिर आपको एकम्प्लिस नहीं कहते, आपको लॉयर कहते हैं। कितनी विडंबना है। अपराध करते हुए साथ देना तो है अपराध, और अपराधी को देखते हुए, जानते हुए कि ये अपराधी है, इस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है, इतने सारे लोगों ने उसको देखा है, उसके बाद भी कोई एक व्यक्ति इतना लॉ के अंदर में अपने को एक्सपर्ट समझता हो
अपने बुद्धि कौशल से कि उसको व्यक्ति को वहां से भी फांसी के तख्ते से भी उतार के ले आए, तो कहने को वो ये तो कह सकता है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स है मेरा। लेकिन बंधुओं, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो उसने अपने कर्म के धर्म को नहीं निभाया। हमने आज प्रोफेशन के नाम पे इतनी अनीति और अधर्म को जन्म दिया है कि संपूर्ण मानवता उसके लिए करा रही। हमारा जो वैज्ञानिक होता है, उस वैज्ञानिक का ये धर्म होता है कि उसके पास में जो विशेष ज्ञान है, मैंने पिछली बार बताया था, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, उसी को हम साइंस कहते हैं। और साइंस जो है वो किसी व्यक्ति का अपना कोई अन्वेषण नहीं होता, कोई नई चीज नहीं खोजता है। वो केवल जो सृष्टि की जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, या तो वो फिजिकल हो सकती हैं या केमिकल हो सकती हैं या बायोलॉजिकल हो सकती हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से वो जो डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है, हम उसको वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि उसके पास एक विशेष ज्ञान हो गया। उसका ये धर्म बनता है कि वो अपने उस विशेष ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाए। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, वो भी तो आखिर कुछ साइंटिस्ट ने बनाए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स है? ये क्या उनका प्रोफेशनल कंडक्ट माना जाएगा? कि जिसको वो कह रहे हैं हम प्रोफेशनल कंडक्ट तो एक बार कह भी सकते हैं, एथिक्स तो नहीं। तो हर कर्म का अपना धर्म होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा। हर इंजीनियर का अपना धर्म है कि जो उसने बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग को उसने आर्किटेक्ट से सहयोग करके उसका इस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, और बाद में उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सुपरवाइज करके उसका जो एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ है, उतने के लिए उसको निश्चित रूप से बनाया होगा। तब तो हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग का जो उसका कर्म था, उसका उसने धर्म निभाया। डॉक्टर का धर्म क्या है? हम में से बहुत से होंगे जो मेडिकल डॉक्टर होंगे यहाँ पे, उनका धर्म केवल ये है कि उसके दर्शन मात्र से मरीज का आधा रोग तो समाप्त हो जाए। वो उसको इस प्रकार का आश्वासन देने की स्थिति में हो, उसका स्वभाव हो, और बाद में उसको बड़ी ईमानदारी से केवल उसका जितना रोग है और उस रोग की जितनी चिकित्सा चाहिए, बस केवल उतना बताए, तब तो वो अपने कर्म को, धर्म को निभा रहा है। और नहीं तो क्या कर रहा है? वो प्रोफेशनल कंडक्ट तो कर रहा है, पर प्रोफेशनल एथिक्स नहीं। हमारा कोई भी टीचर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, छोटे से नर्सरी का, स्कूल का भी टीचर है, उसका भी अपना एक धर्म है। तो हर चिकित्सक का धर्म है, हर इंजीनियर का धर्म है, हर शिक्षा के अंदर में शिक्षक का धर्म है, जो वास्तुकला में शिल्पकार है उसका अपना धर्म है, जो सुरक्षा में लोग हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, उनके अपने धर्म हैं, प्रशासन में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके अपने धर्म हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यापार में है उसका भी एक धर्म है। व्यापारी का ये धर्म नहीं है किसी भी प्रकार से कि वो किसी भी वस्तु का कभी भी किसी समय में समाज में किसी कारण से सप्लाई कम होने की वजह से अभाव हो जाए तो उसकी मन मानी और दुगनी चौगनी कीमत वसूल करने लगे। ये व्यापार नहीं है, ये तो अधर्म है, और एक प्रकार की, ये एक प्रकार पे व्यापार के नाम पे कलंक है। तो जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो तो किसी भी प्रकार से धर्म के आचरण कर ही नहीं रहे हैं। और जो धर्म का आचरण नहीं करना है तो वो मानवता की और श्रेणी में भी कहलाने के योग्य नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी प्रकार के कर्म हो सकते हैं, मैं इतने विस्तार में जाके समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन हम सब जान सकते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के कर्म हैं, हर कर्म का अपना धर्म है। और इसलिए ये कहा जाएगा कि ये जितने वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उनके अंदर में जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं वो तो हमारी थ्योरी होती है, लेकिन जब हम कर्म में उस कार्य को करते हैं तो एक तरीके से उसी धर्म का, जिसको हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा है, उसका हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो संबंध हो सकता है वो हमारे धर्म और कर्म के बीच में होना चाहिए। और ये अगर होता है तो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और यदि मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा हूँ तो मैं अधार्मिक व्यक्ति हूँ। तो एक बात से इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्तव्य ही धर्म होता है। जिस कर्म का जो भी मेरे लिए मेरा कर्तव्य बनता है वही मेरा धर्म है। इसलिए धर्म की अगर बहुत ही सूक्ष्म वो मानी जाए और एक शब्द में कहा जाए तो जो मेरी ड्यूटी है वो मेरा धर्म है। अब बंधुओं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब यूनिवर्सल की बात आती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब यूनिवर्सल धर्म, वैश्विक धर्म, तो यूनिवर्स की बात आती है तो बियॉन्ड बाउंड्रीज है ये।
इट नोज नो बाउंड्रीज। आज हमारे यहाँ जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये देश है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, उसके अंदर में ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। ये सारी बाउंड्रीज जो है ये यूनिवर्स में नहीं होती, यूनिवर्स तो बियॉन्ड बाउंड्रीज होता है। तो इसलिए जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होगी वो संपूर्ण सृष्टि के मानव जाति के लिए होगी, और संपूर्ण जितना चेतन जगत है, जिसमें प्राणी भी आते हैं, कीट पतंगे भी आते हैं, पशु पक्षी सभी आते हैं, और जितना जड़ जगत है उनके भी साथ में किस प्रकार से मानव एक संतुलित व्यवहार करता है, ये उसकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उससे एक्सपेक्ट करती है। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर देखें कॉन्शियसनेस का, आप अपने ही शरीर को उदाहरण के रूप में देखिए। हम अपने इस शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। भोजन करने के लिए हमारी कौन सी इंद्रिय काम करती है? सबसे पहले जो मेरी क्षत्रिय भुजाएं हैं, ये उस भोजन का कौर थाली में से उठा के और मेरे मुख को देती हैं। मुख मेरा ब्राह्मण है। क्षत्रिय ने उस भोजन को, मुख को उपलब्ध कराया। दो दो वर्णों ने अपने आप में आपस में सिंक्रोनाइज किया। अब मुख ने जब उसको लिया, ब्राह्मण है वो, वो क्या करता है? वो उसको अच्छी तरह से चबा के उसका मस्टिकेशन करके और उसको अंत में शरीर में पेट में भेज देता है। ऐसा कर देता है कि पेट जो है साधारणतः आराम से पचा सके। ये पेट मेरा क्या है? ये मेरा वैश्य है। अब पेट क्या कर रहा है? पेट क्या उस भोजन को स्वयं अपने पास रख लेता है। अपनी संपूर्ण शक्ति से जितने भी उसके अंदर हार्मोनिकल डिस्चार्ज हो सकते हैं, उन सब के संयोग और वियोग से जितने भी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन हो सकते हैं, उसके आधार पर उस भोजन को पचाता है। और खाली पचाता ही नहीं है, उसी का रक्त भी बनाता है। उसी से मेरे शरीर की अस्थियां बनती हैं, मेरे शरीर की चर्बी बनती है, मेरे शरीर की सारी शक्ति उसी से बनती है। और क्या करता है वो पेट? उस सारी शक्ति को बना के शरीर के प्रत्येक अंग को दे देता है। वो ब्राह्मण को भी भेजता है उस शक्ति को, वो क्षत्रिय भुजाओं को भी भेजता है, अपने स्वयं को भी रखता है। और अंत में जो मेरे पैर हैं शूद्र, जिनका उस भोजन के साथ में अभी कोई वो नहीं है, भोजन का इतना तो हो सकता है इनडायरेक्टली कि उसने जाके वो अन्न लेके आया हो, तब वो घर में रसोई में खाना बन पाया हो, उस शूद्र को भी शक्ति देता है। तो मेरे ही शरीर के अंदर में चारों वर्ण किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, और सारा का सारा शरीर जो है वो स्वस्थ होता है और सक्रिय होता है। यही व्यवस्था जो है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में है। मैं जब एक यूनिवर्स का पार्ट हूं, तो मुझे करना क्या है? मुझे हर व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से एक बैलेंस्ड बिहेवियर करना है कि किसी को भी मेरी एग्जिस्टेंस से किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। मैं हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हूं। किसी को मेरे से देख कर डर लगता हो, मेरे कारण उसको किसी प्रकार से अनिष्ट की आशंका लगती हो, तो मेरा जीवन जो है सार्थक नहीं है, फिर मैं कॉन्शियस नहीं हूं। इसका मतलब अपने कंसाइंस को मैंने मारा हुआ। इस उदाहरण से हमको थोड़ा सा आगे भी और जाने की आवश्यकता है, तो विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। हम जब ये प्रकृति की बात करते हैं और जड़ प्रकृति की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो धर्म है ये विज्ञान में, दोनों में बड़ा अंतर होता है, और हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी तो आज बहुत कहने लगी है कि या तो आप साइंटिस्ट हो सकते हैं या आप कोई रिलीजियस आदमी हो सकते हैं। बंधुओं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि जो विज्ञान होता है वो भी, जिस प्रकार से मैंने कहा, वो किसी भी जाति की और राष्ट्र की सीमाओं को, भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता। वो बियॉन्ड बाउंड्रीज ही होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक डिस्कवरी होती है, उसका लाभ सारी दुनिया लेती है। किसी भी चीज के अंदर में कोई दवाई अगर नई बनती है और उसके अंदर में आविष्कार होकर किसी रोग का निदान निकलता है, तो वो केवल वो वैज्ञानिक अपने तक सीमित नहीं रखता, सारी दुनिया के मनुष्य उसका उपयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि विज्ञान जो है वो एक प्रकार से वैश्विक दृष्टिकोण रखता है। और वैश्विक दृष्टिकोण उसका क्या है? ले और दे पे है। वो समाज से बहुत कुछ लेता है और समाज को बहुत कुछ देता भी है। तो इसलिए लोगों का ये कहना कि विज्ञान की प्रगति होगी तो धर्म का लोप हो जाएगा, ये बहुत ही इम्बैलेंस्ड और इमेच्योर एक कंक्लूजन है। क्योंकि विज्ञान अगर होगा तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। कारण क्या है कि हमने धर्म की परिभाषाएं बड़ी संकीर्ण बना दी।
जब मेरे अपने अपने धर्म है और मेरा धर्म जो है किसी भी विज्ञान की बात से आहत होता हो तो समझ लेना चाहिए कि मैं धर्म पे नहीं आचरण कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म पे आचरण कर रहा हूं तो वो विज्ञान सम्मत होना चाहिए। विज्ञान का मतलब है जो सृष्टि की, प्रकृति की जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं उसके अनुकूल होना चाहिए मेरा धर्म। तो उसका विज्ञान से क्लैश होने का कारण क्या है? और कारण क्या है कि हमने अपने धर्म को कर्म कांड तक सीमित कर दिया। और जो बहुत सी चीज ऐसी हैं जो अनसाइंटिफिक हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूरोप के अंदर में ईसाई जो मत है उसमें ये कहा गया था कि सृष्टि जो है ये गोल नहीं है, चपटी है। और जिसने उसको गोल कहा उसको मृत्युदंड दे दिया गया। ये यूरोप का इतिहास है। इसी प्रकार से हमारे इस्लाम के अंदर बहुत कुछ इस तरह की कल्पनाएं हैं। उनमें ये भी इस तरह की कल्पनाएं हैं जो किसी तरीके से साइंटिफिक लॉजिक पर कहीं भी खरी नहीं उतरती हैं। तो जब साइंटिफिक लॉजिक पे खरी नहीं उतरती हैं तो उसको धर्म मानने की भूल कैसे करते हैं लोग? और करते हैं तो इसीलिए अधर्म की श्रेणी में आता है और आपस में विवाद करते हैं। और जब विवाद होता है तो इतना बड़ा संघर्ष होता है और हिंसा उसमें जन्म लेती है। मैं इसके अंदर में एक बात और दृष्टिकोण देना चाहता हूं कि विज्ञान क्या करता है। वो प्रकृति के जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन्हीं के धर्म का ही तो इन्वेंशन करता है। जल का धर्म क्या है उसके आधार पे विज्ञान जो है हाइड्रोलॉजी को क्रिएट करता है। एयर का क्या वो है, वायु का धर्म क्या है, उसी को पूरा का पूरा स्टडी करके उसकी बारीकियों को देख के वो इतना एरोनॉटिक्स का काम करता है। सारा जितना हमारा मेडिकल वो है फ्रेटर्निटी वो क्या करती है, मेरे शरीर के ही जितने भी मेरे शरीर के अंग अवयव हैं ये किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उन्हीं के आधार पे वो सारे रोगों का जानकारी लेता है, डायग्नोस भी करता है और फिर बाद में प्रेस्क्राइब भी करता है कि इसको मेडिसिन क्या देनी है। ये क्या है? वो प्रकृति के जो सारे के सारी शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों का एकदम डीप स्टडी, बहुत डेप्थ में जाके बहुत गंभीरता से अध्ययन करके उसी में से उसका निदान ढूंढने का प्रयास करता है। तो फिर विज्ञान हमारा जो है वो प्रकृति से भिन्न कैसे हो सकता है? और प्रकृति अपने धर्म से बंधी हुई है। तो जब तक धर्म से बंधी हुई है तभी तक विज्ञान उसमें कुछ अन्वेषण भी कर सकता है। अगर प्रकृति हमारी प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप किस चीज का अध्ययन करेंगे? आप अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब जो विषय हैं, तो जितने भी हमारे हैं ये कॉस्मिक एनर्जीज का अध्ययन करके उसका ऑप्टिमाइजेशन है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बात में एक छोटा सा और आप देखिए, सनातन धर्म जिसको हम बोलने की बात कह रहे हैं, इसका एक छोटा सा स्थूल उदाहरण देखिए। जैसे आप और मेरा शरीर है, जब हमने जन्म लिया तो छोटे से शिशु के रूप में जन्म लिया, लेकिन शिशु के रूप में हमारा आकार तो बहुत छोटा था लेकिन हमारे अंग सारे थे। धीरे धीरे मेरा शरीर जो है ये निरंतर वृद्धि को बढ़ रहा। मेरा जो शरीर उस समय 1 फुट का रहा होगा आज वो 6 फुट का हो गया। मेरा शरीर उस समय 6 पाउंड का रहा होगा तो आज वो 70 किलो का हो गया। तो क्या हो गया? मैं मनुष्य की क्या आकृति से बाहर हो गया? मेरा हर अंग जो है वो बैलेंस्ड वे में निरंतर बढ़ रहा है, शक्ति को प्राप्त कर रहा है, वृद्धिगत हो रहा है। तो वृद्धिगत जब हो रहा है तो बहुत कुछ तो बदल रहा है, लेकिन कुछ तो है जो कुछ नहीं बदला है। मेरी आत्मा जैसी शुरू में बच्चे के रूप में थी, आज वृद्ध हो गया तो मेरी आत्मा आज भी उसी प्रकार सुरक्षित है। तो ये जो मेरे शरीर में आत्मा है ये सनातन है। मेरे शरीर के अंदर जो पंचभूत तत्व हैं अपने धर्म के हिसाब से धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं आत्मा के संयुक्त होने के कारण। ये क्या है? ये उनका सनातन धर्म है। क्या चीज जो है इसके अंदर में अस्थिर है कि ये शरीर का ये आकार कब तक रहेगा? इसकी एक आयु है, उस आयु के बाद में ये समाप्त हो जाएगा। और यही जो पंचभूत तत्व जो वृद्धिगत हो रहे हैं अंततः अपने ही कारण में लय हो जाएंगे और कारण में लय होकर पुनः मुझे पुनर्जन्म मेरे कर्म फल के हिसाब से मिलेगा। तो यही तत्व मुझे फिर उपलब्ध हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। तो ये सब क्या है? ये सनातन धर्म है और सनातन प्रक्रिया है, ईश्वर की बनाई हुई सनातन व्यवस्था है। तो वैज्ञानिक अगर प्रगति होनी है तो उसके अंदर बुद्धि और विवेक तो चाहिए, लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ में धर्म के बिना वो संभव नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ये कहे कि विज्ञान से हम नास्तिक हो जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी जो है वो इररिलीजियस हो जाएगी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और ये भ्रांति उन लोगों की है जिनकी अपनी मान्यताएं साइंस के टेस्ट पे, लॉजिकली स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरती। विच डजेंट स्टैंड टू लॉजिक इज सर्टेनली नॉट धर्म।
ये मेरा एक स्पष्ट मत है जो मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इस विषय पे कि हमारे यहाँ पे आखिर इतनी समस्याएं फिर खड़ी क्यों हुई है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करने की जरूरत क्या क्यों पड़ी। उसके पीछे एक ही कारण है, और कारण क्या है कि हमारे यहाँ संप्रदाय, अपने अपने वाद, अपने अपने मत, ये इतने ज्यादा बन गए हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि भाई आपका परिचय क्या है, तो कोई भी अपना परिचय जो है ना वो ये तो देगा कि मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं इस संप्रदाय का, हिंदू में भी मैं ये मानने वाला हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शिव का उपासक हूँ, मैं तो केवल ब्रह्मा जी को पूजता हूँ, मैं केवल दुर्गा माँ को देखता हूँ। ये सारे बहुत तरह के वो कुछ अपने बताएगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैं केवल मनुष्य हूँ। इसका मतलब यह है कि मनुष्य ने अपनी आइडेंटिटी को इन सब चीजों के अंदर में मर्ज किया, सबमर्ज कर दिया। जब सबमर्ज कर दिया तो फिर बताइए हम किस चीज के ऊपर में तैर किस बात पर हैं। तैरते हम जब हैं जब हम हमारी रिलेटिव डेंसिटी उससे कम होती है। लकड़ी तैरती है जल के ऊपर में, लोहा नहीं तैरता है। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो इस संसार सागर के ऊपर में बड़ी ही आसानी से इसके ऊपर में नेविगेट करता है, क्योंकि धर्म के ऊपर में स्थिर है वो इसमें डूब नहीं सकता है। डूबता केवल वो है जिसके ऊपर में अपनी मान्यताओं का, अपनी व्यक्तिगत निजी मान्यताओं का, निजी आस्थाओं का इतना लोड है कि वो लोहे की तरह डूबता चला जाता है और कोई सीमा नहीं है कहां तक जाए। तो जब ये इस तरह की स्थिति हुई है तो कारण क्या हुआ, हमारी दुनिया में सारे नरसंहार केवल इसी कारण से हुए। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आप जरा इसको एनालिटिकल स्टडी करिए, क्या मजहब के अलावा और कोई कारण है जो आपस में बैर रखने का कोई कारण बनता हो। केवल मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, और इस मजहब ने लोगों को खून के प्यासे एक दूसरे का बना दिया, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रूस और यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। और आप देखने वाले हैं, आप चाइना और ताइवान की भी स्थिति ये होने वाली है, हमास और इसराइल की ये स्थिति चल रही है, और दुनिया में मालूम नहीं कहाँ कहाँ भी किस प्रकार का ये सारा का सारा अधर्म का आचरण हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है कि धर्म के नाम पे उसको धर्म युद्ध का नाम दिया जाता है। कोई उसको जिहाद कहता है, कोई उसको क्रूसेड कहता है। धर्म के नाम पे अधर्म का आचरण करना ये केवल किस लिए है कि वो धर्म उनका सनातन धर्म नहीं, वो उनके अपने बनाए हुए मत और पंथ हैं जिसको वो धर्म की श्रेणी में अपने सिर पे उठा के घूमते हैं। अब कोई कहे कि भाई साहब इन सब चीजों का समाधान क्या है, समाधान भी है, और वेदों में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है। और मैं उस वेदों के मंत्र की उक्ति करके आपके सामने उस समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ये सारी समस्याओं की चर्चा हम कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि दो ही चीज होती है हमारे पास, एक चॉइस होती है, आइदर वी आर ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वी आर ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बनना है, बुद्धिजीवी हैं और समाज में हम सदाचारी व्यक्ति हैं। धर्म की सही परिभाषा को जानने के लिए इस समय हम सारे यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए, वेदों में ऋग्वेद में एक मंत्र है, उनके 8वें मंडल का मंत्र है, ये 67वें सूक्त का 21वां मंत्र। आप में से कोई चाहे तो इस रेफरेंस को नोट भी कर सकता है। उसमें लिखा है, विषु द्वेषो व्यहतिम आदित्यासो विसंहितम। मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं आपके सामने कि समाधान कारक इसमें क्या है। इसके अंदर एक शब्द आया है आदित्य। आदित्य जो शब्द है, ये अर्थ इसका है कि अदिति का जो पुत्र होता है उसको आदित्य कहते हैं। अदिति किसको कहते हैं, ये सारी पृथ्वी माता को अदिति कहते हैं, भूमि माता को अदिति कहते हैं। और भूमि माता के मतलब फिर मातृभूमि नहीं, भूमि माता, इसमें देखिए बहुत बड़ा अंतर है। मातृभूमि तो हमारी एक किसी देश की परिधि के अंदर में एक संकीर्ण सोच हो जाती है, और जब हम भूमि माता कहते हैं तो हम एक विश्व नागरिक बनते हैं। सारी दुनिया को जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी ये पृथ्वी जो है, ये वसुधा जो है, ये मेरा परिवार है। जब हम इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं तो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के व्यक्ति होते हैं। तो भूमि जो माता है, उस भूमि माता का अर्थ जो सारा का सारा ये भूमंडल है, जिसको हम कहते हैं पूरी की पूरी सृष्टि गोल है, ग्लोब को देखते हैं तो वो भूमंडल ही तो है।
तो उस भूमंडल के जितने भी पुत्र हैं वो एक प्रकार से आदित्य, और आदित्य कौन कौन है? विश्व नागरिक। आप देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब विश्व नागरिक हैं। सूर्य एक ही है सारी दुनिया में, दो नहीं है। आज आप और हम यहाँ पर इस व्याख्यान को देख रहे हैं, आप सुबह को वहां पर सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ रात को उसको सुन रहे हैं। ये कारण क्या है? सूर्य तो वही है, एक जगह उसका भाव है, एक जगह उसका अभाव है। जहां सूर्य है वहां दिन है, जहां सूर्य का अभाव है वहां रात्रि है, पर सूर्य तो वही है। तो सूर्य क्या है? ये एक सनातन विश्व नागरिक है। चंद्रमा क्या है? उसी प्रकार से अन्य नक्षत्र क्या हैं? ये सब सनातन विश्व नागरिक हैं। तो जब ये सनातन नागरिक हैं, तो वेदों ने आदेश ये दिया है कि हम इसी प्रकार के एक आदित्य बने। और आदित्य बनेंगे तो कैसे करेंगे? कि हमको जितने संहितम, संहितम का अर्थ है कि समस्त जितनी आसक्तियां हैं, जिन जिन चीजों से हम बंधे हुए हैं, अपने अपने विकार से बंधे हुए हैं, वासनाओं से बंधे हुए हैं, भोग विलास से बंधे हुए हैं, आपस में क्लेश करते हैं, द्वेष करते हैं, ये सारे जितने भी बंधन हैं, इन सब से हमको मुक्त होना चाहिए। यदि हम इनसे मुक्त हो जाएंगे तो हम एक प्रकार से अदिति के पुत्र, इस विश्व के नागरिक बनने की अपने अंदर में सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। इससे आगे मंत्र क्या कह रहा है? इससे आगे वो ये कह रहा है कि जो संहितन है, जब इनको छोड़ेंगे तो द्वेष भी छोड़ेंगे हम। तो जब हम द्वेष को छोड़ के और ये सारे अपने मनोविकार को छोड़ के धर्म के लक्षणों को अपने जीवन का एक प्रकार से ध्येय बनाएंगे, तब ही हम विश्व नागरिक होने की संज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने साथ में ये बता दिया कि मंत्र कि विश्व नागरिक बनने के लिए हमको संहितन का त्याग किया, तो फिर हमको ये ईसाई, मुसलमान, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये नहीं बनना है। क्या बनना है? केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म ही बनना है। बंधुओं, हमारे यहाँ पर वेदों में एक जय घोष किया जाता है, तो बड़े जोर शोर से किया जाता है। और सामान्यतः जिन लोगों ने वेदों का थोड़ा भी परिचय प्राप्त किया हो, वो ये बोलते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम। हम इंद्र बने और इस सारे संसार के अंदर में विश्व को आर्य बनाए। अब विश्व को आर्य बनाने का पता नहीं क्या अर्थ लोग समझते होंगे। जो मैं अर्थ समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब कृण्वन्तो विश्व आर्यम की बात है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं ये आर्य समाजियों का जय घोष है। बंधुओं, आर्य समाजियों ने तो वेद नहीं लिखे हैं। आर्य समाजी सारे लोग वेद को पढ़ते हो ये भी आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति जो आर्य समाज में जाता हो वो सारे के सारे वैदिक मान्यताओं के ऊपर में आचरण करता हो ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए ये भी आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति आर्य समाज में जा रहा है वो वास्तव में आर्य कहलाने का अधिकारी है भी कि नहीं। ये भी एक हमारे के लिए एक कसौटी पे कसने का विषय है। मैं ये चर्चा कर रहा था कि जब हम कृण्वन्तो विश्व आर्यम कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने का अर्थ आर्य समाजी बनाना नहीं है। आर्य अपने आप में एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। जैसे सनातन एक एडजेक्टिव है, वो किसी भी चीज के साथ लगाया जा सकता है। सनातन तत्व कहते हैं, सनातन सृष्टि कहेंगे, सनातन धर्म कहेंगे, सनातन व्यवस्था कहेंगे। इसी प्रकार से आर्य भी वो है जो आर्य के गुणों से युक्त हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो। त्रेता युग में श्री राम के समय में जितने भी व्यक्ति थे वो सब एक दूसरे को आर्य और आर्य पुत्र कह के संबोधित करते थे। ये स्थिति महाभारत काल तक भी चली। महात्मा बुद्ध भी स्वयं को आर्य कहते थे, भगवान महावीर स्वयं को आर्य कहते थे। ये आर्यत्व जो है ये आर्य समाज से जुड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई। इसलिए जब कृण्वन्तो विश्व आर्यम की बात लगती है तो लगता है ये आर्य समाजियों का विषय है, उन्हीं को करने दो। बंधुओं, ये सनातन धर्म का विषय है। हम ये चाहते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते, मानव जाति का घटक होने के नाते अपने उस मानव धर्म का निर्वाह करे जिसको ईश्वर ने सनातन धर्म के रूप में मानव मात्र को दिया है। और यदि अगर वो उन धर्म को अपनाता है और सनातन धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो फिर वो आचरण करता है तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से
कोई और धर्मी नहीं है, वो सत्य सनातन वैदिक धर्मी है। करना क्या होगा उसको? एक प्रकार से इस कृण्वन्तो विश्व आर्यम को एक यज्ञ के रूप में अपने जीवन में लेना होगा। यज्ञ कहते हैं एक व्यवस्था को। यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं होता है कि हमने कुछ अग्नि आहूत की और उसके अंदर समिधाएं और सामग्री डाली, केवल उसी को लोग यज्ञ कहने के आदी हो गए हैं। यज्ञ तो एक व्यवस्था है। इस सृष्टि के अंदर में एक यज्ञ चल रहा है। सारे के सारे जितने भी जड़ देवता हैं अपने अपने नियम के अनुसार से उस कार्य को कर रहे हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत। वो एक यज्ञीय व्यवस्था है। सूर्य अपनी निश्चित गति से चल रहा है, कोई यज्ञीय व्यवस्था है। सारे लोग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये एक यज्ञीय व्यवस्था है। तो ऐसी यज्ञीय व्यवस्था को, यज्ञ का मतलब है एक सिस्टम, उस सिस्टम का जब हम एक पार्ट बनते हैं, जब हम एक किसी सेना के सैनिक बनते हैं, तो उसके अंदर में अपने मनमानी नहीं करते हैं। स्वयं के ऊपर में एक अनुशासन ओढ़ के चलते हैं। और अनुशासन केवल क्या है? जिसको कि आर्य समाज के एक उसमें जो उसमें आर्य समाज के नियम है उसमें ये बताया गया कि जितने भी ऐसे नियम हैं जो मेरे अपने हित के लिए हैं, उन प्रत्येक हितकारी नियम के लिए हम स्वतंत्र हैं और सर्व हितकारी नियम के लिए हम परतंत्र हैं। तो जब हम सर्व हितकारी नियम के लिए परतंत्र की श्रेणी में आते हैं तो उसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का नाम देंगे, क्योंकि हम उस हितकारी की बात कर रहे हैं जो सारी दुनिया के विश्व के हित के लिए बात करनी है। तो जब मुझे वो करना है तो मैं वैश्विक धर्म निभाने वाला एक व्यक्ति होता हूँ। तो फिर मेरा जो अपना व्यक्तिगत धर्म है वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसलिए उन्होंने उस नियम में महर्षि दयानंद ने ये बहुत बड़ा मानवता के ऊपर उपकार किया कि अगर आर्य बनना है तो आर्य बनने का नियम यही है कि हितकारी नियम जो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत है उसमें तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी करो। आप कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, आप कहो मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, बौद्ध हूँ, कुछ भी हो सकते हो आप। उसके लिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब दुनिया की बात आएगी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ही जो मत है, मेरा ही पंथ है वो श्रेष्ठ है, बाकी सब दुनिया झूठी है। और इस बात के लिए केवल एक वेद अपवाद है। वेद ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर में सारे का सारा ये एक परिवार है, सारा विश्व जो है ये एक नीड है। और बाकी सब क्या बोलते हैं? हम तो कहते हैं कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन बाकी जो पंथ वाले हैं वो क्या बोलते हैं? वो बात भी करते हैं अगर भाईचारे की तो वो केवल अपने पंथ के लोगों के लिए करते हैं। मोहम्मद साहब अगर कभी सिफारिश करेंगे तो वो केवल उनके लिए करेंगे जो उनके उसके ऊपर में ईमान ले आए होंगे। जीसस भी अगर रिकमेंड करेंगे तो वो केवल उन लोगों के लिए जो फाइडल्स होंगे, जो इनफाइडल्स होंगे, उनके लिए नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का पक्षपात है, इस प्रकार का भेदभाव है, तो जहाँ पे खुदा के पैगंबर, ईश्वर के दूत, ईश्वर का एकमात्र पुत्र भी मानव जाति के अंदर में इस प्रकार से भेद उत्पन्न करता हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता है। धर्म की श्रेणी में हमारे भी पौराणिक धर्म केवल वही आ सकते हैं जो संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं शैव हूँ इसलिए वैष्णवों से मेरा मतभेद है, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। वो केवल एक पंथ का और मत का अवलंबी होकर अन्यों के साथ में विवाद उत्पन्न कर रहा है। इसलिए पुराणों में भी एक बात बड़ी स्पष्ट कही गई है, हम उस पर भी आचरण करें कि कमल से उत्पन्न हुआ है ये सारी की सारी सृष्टि। अगर पुराण ने ये कहा है तो हम उसी के ऊपर में भी तो कम से कम विश्वास करें कि कमल के रूप में अगर सृष्टि और मानव जाति उत्पन्न हुई है तो फिर निश्चित रूप से कमल जो है वो अनासक्ति का प्रतीक है। कीचड़ में उगता है लेकिन एकदम शुद्ध और निर्मल होता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। पंख कहते हैं कीचड़ को, और जो पंख में उत्पन्न होके भी इतना शुद्ध और पवित्र हो उसको हम कमल कहते हैं, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। तो क्या मानव जाति अगर सब प्रकार के अपने जितने भी मानव के उनके वो हैं उन सबको किसी भी प्रकार से तिलांजलि देके केवल और केवल कमल को ही अपने जीवन का ध्येय बना के कोमल भी हो उसी के समान और अनासक्त भी हो, तो ये सृष्टि एक प्रकार से लोगों के लिए कल्याणकारी सृष्टि होगी। उसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अभाव नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा।
और इसलिए वेदों ने एक अंतिम जो उक्ति कही है वो कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने एक हमारे लिए आदेश दिया है, वो भी ऋग्वेद में ही दिया है, उसके 10वें मंडल में, मनुर्भव जनया दिव्यम जनम। उसने कहा, हे मनुष्य, तुम केवल मनुष्य बनो और मनुष्य बन के देवों के रूप में संतानों को उत्पन्न करो, स्वयं भी देव बनो, एक चेतन देव। और चेतन देव की हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के देवों की कल्पना की गई है। माता पिता जो है वो देव की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे गुरु हैं वो देव की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे घर में कोई अतिथि आता है वो हमारे देव की श्रेणी में आता है। और इसके अतिरिक्त मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितने भी अन्य पशु पक्षी और प्राणी हैं उनको हम वैश्य देव कहते हैं, उनके लिए बलि वैश्य देव यज्ञ करते हैं। तो जब ये इस प्रकार की स्थिति होती है तो वेदों का ये आदेश अगर हमने मान लिया कि मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, और साथ में एक उक्ति और कह दी, सत्यम वद धर्मम चर। इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्य जो है ये तो केवल कहने का विषय है, ज्ञान जो है ये जानने का विषय है, लेकिन धर्म, धर्म केवल और केवल आचरण का विषय है। धर्म पे अगर मैं चलता हूँ, सत्य को जानता हूँ, तो मेरे से जितना भी कार्य होगा वो केवल और केवल कल्याणकारी होगा। मैंने बंधुओं अपनी अल्प बुद्धि के आधार पे जितना कुछ मैं इस विषय पे अपनी राय दे सकता था, मैंने आप सबके साथ में उसको साझा करने का प्रयास किया है। मेरा अनुमान है कि आप सबको भी इनमें से बहुत सी बातें ग्राह्य लगी होंगी। फिर भी किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो मैं यहाँ पर उसके लिए प्रस्तुत हूँ। एक यहाँ पर मेरे परिचितों में मेरी एक बहन कृष्णा पाहुजा जी जुड़ी हैं। मेरे एक मित्र आज नहीं रहे, उनकी पत्नी है मेरी भाभी, तो मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। अन्य जितने भी लोग जुड़े हैं जिनके मैं नाम नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ या नहीं भी जानता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ और आप सबको अपनी ओर से कल्याण की कामना करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम। Gupta ji, बहुत बहुत उत्तम. Gupta ji said you have taken us beyond simple physical and spiritual concepts. You have tried to emphasize that self is only reflection of universal consciousness, and we all are manifestations of the same divine source. So this is a very new, very innovative explanation of universal consciousness. I think we have 15 minutes more, and if anybody has any questions, please unmute yourself and ask the question. अच्छा, even before somebody asks a question, I would like to clarify a few things. Yeah. Which we are seeing in Tamil Nadu these days. Some person called Stalin's son, Yeah. a minister in his cabinet also, he is abusing Sanatan Dharma like anything. I feel that we must know the reality behind it. मैंने इसके बारे में जितना अध्ययन किया तो मुझको ये मालूम है कि सनातन धर्म है और जो तमिल हमारा समाज है उनके बीच में ऐसा संबंध है जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है फेटस के साथ। जन्म लेता है शिशु तो अपनी भ्रूण नाल से माँ के साथ जुड़ा होता है। उसी प्रकार से ये सारा हमारा जो तमिल कल्चर है वो सनातन धर्म के साथ बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। और डीपली इतना जुड़ा हुआ है कि उसके बाद में स्थिति क्या आई कि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी जो हमारी बनाई डिवाइड एंड रूल की, उन्होंने वहां पे एक जस्टिस पार्टी बनाई और उस जस्टिस पार्टी का केवल इतना ही काम था कि जितनी भी हमारी सनातन मान्यताएं हैं किसी भी तरीके से उनके ऊपर में आक्षेप लगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे 1916 में उन्होंने वो पार्टी बनाई और 1930 में जाके 1946 में एक द्रविड़ कसगम बनाई गई, पेरियार ने बनाई। और इस पेरियार ने सिर्फ एक ही काम किया कि जितना भी ब्राह्मण है वहां पे एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी नेशनल, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने क्या किया कि तमिल जो भाषा है उसके ऊपर में भी आक्षेप लगाया
उसका जो साहित्य था उस पर भी लगाया। तमिल स्कॉलर जितने थे उनको वर्थलेस कहा उन्होंने। और हालत यहाँ थी कि उन्होंने ये कहा कि ये ब्राह्मण जो है ये आर्य स्टूज हैं और हम द्रविड़ हैं। और साथ में इस सीमा तक गए वो कि जो तिरुक्कुरल है तिरुवल्लुवर का, उसके ऊपर में भी दुनिया भर के आक्षेप और लांछन लगे। आदि शंकराचार्य वहीं पर उत्पन्न हुए हैं, वो केरल में हुए। उस समय तो केरल और तमिलनाडु एक ही था। उन्होंने आदि शंकराचार्य ने, फिर उनके बाद में उनके शिष्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए। ये सब एक प्रकार से तो द्रविड़ स्थान में भी उत्पन्न हुए थे, लेकिन जिस प्रकार की उनकी मान्यता थी, शंकराचार्य ने इसका बहुत डट के विरोध किया कि ये तो लोग किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है। और अपने उसमें हम जिस करुणा निधि को जानते हैं, जिसके ये सारे के सारे संतान हैं, आप जरा करुणा निधि की पिछली हिस्ट्री को ढूंढ के देखिए कि जब उसने अपने यहाँ पे फिल्में बनाई तो उस फिल्म के अंदर में भी उसने रामानुजा की जो लाइफ है, हिस्ट्री, वो उसके अंदर में फिल्म बना के उसकी बहुत प्रशंसा की। मुझे ये आश्चर्य होता है कि जिसके ऊपर में खुद करुणानिधि ने इस प्रकार की एक प्रशंसनात्मक फिल्म बनाई हो, उसका बेटा और उसका पोता जो है वो इस बात को नहीं जानते। जानते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जानने के बाद भी क्या है कि उन्होंने सिर्फ, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक ही बात पे डिपेंड करती है, एंटी ब्राह्मणिज्म पे। और जब ब्राह्मण को गाली देनी है तो सनातन धर्म को गाली देना, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक आवश्यकता बन जाती है। तो जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म पे ही गाली नहीं दे रहे हैं, एक प्रकार से अपनी एग्जिस्टेंस पे, स्वयं पे। जिसको मैंने ये कहा था कि कालिदास जो है वो बड़े मूर्ख माने जाते थे जब तक वो कवि नहीं बने थे, महाकवि। क्योंकि वो जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो किसी ने देख के कहा कि इतना महामूर्ख आदमी जिस डाल पे बैठा है उसे काट रहा है। तो आज मेरा ये निश्चित मत है कि जितने हमारे ये तमिल पॉलिटिशियन हैं और उसके साथ में उनके जितने भी स्टूज हैं, वो उसी कालिदास की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो विनष्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जरूर मारे जाएंगे। ये निश्चित रूप से इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण बनने वाला है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी लोग इस विषय में विचलित ना हो। ये इनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है जिसके लिए वो माइंडलेसली इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उनके पास में ये कहने का कोई आधार नहीं है। और तमिल जितना भी हमारा साहित्य है वो इतना शुद्ध संस्कृत के अंदर में लिखा हुआ है, और ये संस्कृत जो है ये सनातन धर्म का प्राण है। इसलिए जैसे प्राण से शरीर को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से इस तमिल कल्चर को संस्कृत से अलग नहीं किया जा सकता। ये मूर्ख जो हैं जिन्होंने ये द्रविड़ कल्चर बनाई है, और द्रविड़ जो है इन्होंने ही कहा कि आर्य विदेश से आए हैं। तो जो इस प्रकार की अंग्रेजों की उस मान्यता के आधार पर ये केवल ब्रिटिश स्टूज हैं, एंटी नेशनल हैं, इसलिए ये एंटी ब्राह्मण है। पर इनका भविष्य नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। इतना ही मुझे निवेदन करना था। Ramesh ji, I just have a brief comment. Yeah. That from the neuroscience and neurobiology perspective, I think universal consciousness, a better term is implicit awareness. Because in neuroscience, we are differentiating between consciousness and awareness. Consciousness is explicit, dualistic, partial, individualistic or egoistic, local, and is mainly processed by the left hemisphere, left brain hemisphere. And it's like a spotlight, a small spotlight that goes from here to here to here to here. It is sort of sequential processing. While implicit awareness is non-individual, non-dualistic, holistic, non-egoistic, universal, non-local, is processed by the right hemisphere and is like a floodlight. It illuminates the whole thing from all at once. And that is parallel, non-sequential. So it's good to differentiate between these two modes of our conscious attention or being, either explicit consciousness or implicit awareness.
And we need to balance both. We need to use the spotlight sometimes, but also the floodlights, as the speaker said about Sampurnata. Sampurnata is in that floodlight. The whole thing is illuminated. While the left hemisphere, when we talk and verbal and all that, is a spotlight, small spot. That's it. So there are these two ways of knowing and understanding our experience. One is the explicit, dualistic spotlight, and the other is implicit, holistic, and floodlight. So I think it's better to call it implicit awareness rather than universal consciousness. Nice. I sincerely appreciate what you have said. विनोद जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है. But to my mind, this word implicit doesn't replace, it only amplifies what I have told you earlier. It is sort of an elucidation. When we start elucidating something, so naturally we start amplifying it. Implicit is something which is invisible. Explicit is what we see. So when we are talking of dharma, so naturally there are so many things which only not we see, we only perceive them. So whatever comes in the jurisdiction of perception is implicit. Whatever comes in a sort of an experience, it is explicit. So I perfectly agree with what you have said, and I feel grateful to you that you have only amplified and elucidated the subject. And it is in fact the same. It doesn't replace universal consciousness, but it can be a better synonym also, which I feel. Yeah. I agree with that. That's good. I just presented a neuroscience perspective. That's all. Yeah. But But your speech was great. Yeah, excellent exposition. Anybody else has a question or clarification or comment? Yeah, please. Yeah. I would request our senior friend Brigadier Luke Tukeji, who is from Pune. Okay. If he can make some sort of comment. Yeah. Brigadier Luke Tuke from Pune. This is the second lecture or talk by Ravi Devji. I have attended both and I've been sitting through every minute. My only request is that it's a great knowledge, no doubt about it. But what happens is, today I will remember about 75% of it, tomorrow 50, then 30, 40, and after 5-10 days, I can only recollect 10%. My request is it possible to convert this into scripts so that it can be sent on the email or WhatsApp, and we can read it? Yeah, we have the first lecture already on a YouTube link, and we will do same thing with this presentation also. Thank you. Yeah, but Gupta ji, I think Dr. Deshmukh and you discussed this question of implicit awareness and explicit awareness or consciousness. How about the spiritual literature on this? It talks about Atman and Brahman. Are they fit into this explanation which you just provided? Because Atman is also a reflection of universal consciousness, right? And in our spiritual literature, they talk about Brahman, which is universal consciousness. You explained so well the fundamental unity or oneness among the whole universe. Not only just humans, but the whole universe, humanity, and both physical and spiritual side. So the point I am asking is, how do you connect this individual awareness with universal awareness? I mean, you explained that the fundamental unity, fundamental oneness is explained, but how this from duality to non-duality, what is that process? Is it intellectual understanding or it is something else?
I think I should stop here. Yeah. Ramesh ji, what you have been referring about duality, probably it is called in Shankaracharya's terminology, it is called Dvait. Yeah. और शंकराचार्य ने जब एक द्वैत बनाया तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा और परमात्मा। फिर कुछ लोगों ने, उन्हीं के कुछ शिष्यों ने बाद में उसको कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, ये एक ही है, अद्वैत है। अद्वैत की जब सीमा की बात आई तो उसके अंदर में फिर एक उनके माध्वाचार्य हुए, उन्होंने कहा नहीं, विशिष्ट अद्वैत है। जब ये ड्युअलिटी की बात चलती है तो उसके अंदर में कई तरह के मतांतर उन्होंने खुद ही अपने आप क्रिएट कर दिए। जबकि शंकराचार्य ने इस विषय के अंदर में बड़ा स्पष्ट ये कहा था कि द्वैत का मतलब केवल इतना है कि उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का कहा कि मैं ब्रह्म हूं और बाकी प्रकृति है। इसके अंदर में मेरा ये निवेदन है कि आत्मा और परमात्मा के अंदर में कुछ आधारभूत अंतर होते हैं। आत्मा और परमात्मा का बहुत से लोग कहते हैं ये उसका अंश है। अगर अंश होती तो पिता का अगर अंश पुत्र होता है तो उसके अंदर सामान्यता पिता के गुण होते हैं। इसलिए वैदिक मान्यता जो है वो उसको अंश स्वीकार नहीं करती है, और इसीलिए वेद क्या कहते हैं कि वो द्वैत नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, वो त्रैत है। देखिए 9वीं शताब्दी में तो उन्होंने अद्वैत की बात की शंकराचार्य ने। फिर उसके बाद में 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं, ये विशिष्ट अद्वैत होता है, थोड़ा क्वालिफाई कर दिया। और 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य आए, उन्होंने द्वैत कह दिया। तो शंकराचार्य ने तो ड्युअलिटी की बात भी नहीं कही, उन्होंने तो एक ही बात कही, अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने द्वैत कहा, उन्होंने माया बताया और साथ में चेतन जगत को बताया। मेरा ये कहना है कि ये सब न्यूएंसेस तो हो सकते हैं, बट दे कांट बी द रूल। क्योंकि एक वेदों में मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष के ऊपर में दो पक्षी जिनके सोने के पंख हैं वो बैठे हुए हैं। उसमें क्या कर रहा है, एक पक्षी तो उस फल का, उस वृक्ष का फल जो है उसको खा रहा है, स्वाद ले रहा है, और दूसरा पक्षी केवल साक्षी भाव से उसको देख रहा है। इस छोटे से एक वाक्य के अंदर में, इस मंत्र के आधार पे ईशोपनिषद में वैदिक मान्यता को स्पष्ट किया गया कि इस संसार में 3 सत्ताएं हैं। तो ना तो ये द्वैत की श्रेणी में आएंगी, ना ये अद्वैत की श्रेणी में आएंगी, ये त्रैत की श्रेणी में आएंगी। और इस त्रैत की श्रेणी का बाद में शंकराचार्य ने भी, जिस विषय में शंकराचार्य के साहित्य को मैंने पढ़ा है और ऋषि दयानंद ने शंकराचार्य के ऊपर में जो टिप्पणी की है, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की है कि ऐसा अद्भुत और अद्वितीय सन्यासी इस देश के अंदर में दूसरा नहीं हुआ। ये तो कुछ ईश्वर की विडंबना है कि 32 वर्ष की आयु में भी उन्होंने, ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन उनकी किसी भी बात में ऋषि दयानंद ने आलोचना नहीं की, केवल एक विषय पर कहा कि ये जो उन्होंने अद्वैत की बात की है, ये वैदिक मान्यता के आधार पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। तो जब कोई चीज खरी नहीं उतरती है तो हमको कोई एक यार्ड स्टिक तो बनानी होगी। अगर हमको सभी चीजों को एनालाइज करना है तो हमने कुछ एक एक्जियोमेटिक एक फीलिंग भी तो होनी चाहिए कि हम ये मान के चलें कि ये हमारा ये हमारा मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है, ये हमारी यार्ड स्टिक है। जो इसका अनुकूल होगा हम उसको मानेंगे, जो इसका अनुकूल होगा वो नहीं मानेंगे। जब बात वेदों की आती है तो वेद तो किसी व्यक्ति ने बनाए नहीं है, उसके अंदर में किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं है, उसके अंदर में किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर में कोई बात लगे कि पक्षपात हो किसी का या किसी ने दुराग्रह किया हो। जब व्यक्तियों ने बनाया नहीं है और सारी वैदिक मान्यताओं को हम सनातक वैदिक मान्यता मानते हैं, तो फिर हम इस त्रैत के वाद के बारे में आपस में इस तरह का मन में भ्रम भी क्यों रखें। सीधा सीधा बताया कि परमात्मा की व्यवस्था से, जिसको बताया उन्होंने एक वृक्ष है वो तो प्रकृति है,
उसके ऊपर में जो एक प्राणी, वो पक्षी बैठा हुआ है, स्वाद ले रहा है, वो जीवात्मा है। और जो साक्षी भाव से केवल उसको देख रहा है, वो परमात्मा है। अच्छा। जब इतना स्पष्ट उन्होंने बता दिया तो मुझको लगता है कि एक बार हम सबको उस विषय को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में भी कोई अगर भ्रांति आती है तो फिर उसको, मैं तो एक बहुत सामान्य विद्यार्थी हूँ, किसी विद्वान से भी उसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, मुझको लगता है कि ये जो त्रैतवाद का विषय है, यही एक प्रकार से वैदिक मान्यता के अनुरूप है और सनातन धर्म को परिभाषित करता है। Dr. Deshmukh has a comment. Yes, please. Yes. Can I I? think Dva Suparna is a beautiful shloka, and it again points to the two modes of our being and attention. You know, the Sakshi Bhav and the one who is engaged in eating or experiencing. Similarly, I want to share a beautiful, my favorite shloka from Sri Hanuman to Sri Ram. And it depends on how we look at ourselves and the other. And the shloka is Deha bhavena dasosmi, jiva bhavena tvadanshakaha, atma bhavena tvamevaham, iti me nishchita matihi. When I consider myself as the physical body, I am your servant, I am your das. When I consider myself as a small amsha of the whole reality, you know, I'm just a small part of you. Yeah. But when I consider myself as the holistic Atman, the whole being, it's the supreme I am you. being, I'm you, that's it. And this is my firm conviction. Absolutely. This is Yeah. my conviction. That's it. I think that covers, Right. that explains the whole concept so beautifully. Yeah. Yeah, Anil Bhate here. This was a very, very wonderful talk by Gupta ji, and I'm just trying to add a footnote to what Gupta ji has so elaborately talked about, and Dr. Vinod Deshmukh ji also has put some comments on that. So I'm just adding one more footnote, and that footnote refers to Bhagavad Gita, अध्याय 13वां 28वां श्लोक है, 28वां श्लोक है। और मैं ये बुक से पढ़ रहा हूँ अभी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। So सभी समम सर्वेषु भूतेषु, in all beings, तिष्ठन्तं यानी एग्जिस्ट, परमेश्वरम परमेश्वर है सभी भूत मात्र के अंदर। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनश्यत्सु मीन जो कुछ नश्वर है, जो कुछ खत्म होने वाला है, उसमें भी अविनश्यन्तम यानी अविनाशी को जो पहचानता है, जो खत्म होने वाला है, नश्वर है, उसमें भी जो अविनश्यन्तम ऐसे अविनाशी ब्रह्म को पहचान सकता है, सह यह पश्यति स पश्यति, वही अच्छी तरह से देखने वाला होता है। यह पश्यति स पश्यति, वही देखना है, वही अच्छी तरह से देख सकता है। दिस इज द श्लोका नंबर 28 in chapter number 13 of Bhagavad Gita. So I just wanted to add a footnote to the entire wonderful discussion that has been happening so far. Thank you, sir. Thank you. Okay. Gupta ji, I think Anil ji has ratified Ravi Dev ji's concept of Traitvad. कि जो देखने वाला है वो समझता भी है। So ultimately, I think Traitvad stands. Sorry, I'm not able to unmute. Show my video because it is disabled. you can start. You can start video. Okay. Yeah. नहीं, मैं ऐसा फील करता हूँ डॉक्टर विपिन जी, आपने अच्छा किया, अपनी इसमें भी संतुष्टि दी है। मैं ये फील करता हूँ कि जो विनोद देशमुख जी कह रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, जो बात वो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ।
और जब वो होलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं तो होलिस्टिक वही है कि जो धर्म की अनुमति से है। जिसको जो धर्म सम्मत नहीं है वो होलिस्टिक नहीं हो सकता। होली का मतलब है पवित्र, होली का मतलब है एज ऑर्डेन्ड बाय द प्रोविडेंस। इसलिए जो चीज भी जिसको अनएथिकल कहेंगे वो अनहोलिस्टिक हो, एथिकल होगा होलिस्टिक होगी, एथिकल है तो धर्म होगा, धर्म है तो सनातन ये होगा। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली दे लीड टू वन पॉइंट। एंड आई रियली फील ग्रेटफुल दैट विनोद चौहान जी हैज also corroborated what I could muster the courage to say. Yeah. Dr. Deshmukh, you want to have one more? Yeah. No, just a brief thing that I agree with that. What is holistic is also sacred, is also extremely precious, whether you call it divine beings, a sacred being, the Paramatma, whatever, that is the holistic. But from a neuroscience perspective, we don't personify it. We don't give it any characters. We just accept it as a mode of being, mode of existing, being the holistic, being the sacred. And the sacred is in the ordinary. Beauty is in the ordinary, in everything. माफ कीजिएगा, मेरा अज्ञानी एक प्रश्न होगा कि हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अलग अलग शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया अंजलि जी। और ये प्रश्न आपने किया तो मुझे लगा कि बिल्कुल हमारे विषय की एक तरीके से स्पष्टता हो गई। हिंदू धर्म जो है अपने आप में धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन शैली है, और जीवन शैली जो होती है वो परंपराओं पे और हमारे जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर आधारित होती है। और जैसा मैंने अभी अभी पहले ये बताने का प्रयास किया कि हिंदू शब्द जो है ये हमारा सनातन पहचान नहीं है। सनातन पहचान हमारी इस आर्यावर्त में आर्य के रूप में है, और आर्य जिस धर्म को मानते रहे वो वैदिक धर्म है। उसके बाद में जब उसके अंदर में बहुत से परिवर्तन आए, बहुत सी अपनी अपनी मान्यताएं आई, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म कहलाने लगा। तो हिंदू धर्म सारा का सारा वैदिक धर्म हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वेदों से बहुत से सिद्धांतों को उठा के पुराणों की रचना हुई है। और जो अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जब एक व्यक्ति ने पुराण लिखा तो वो काफी नहीं हुआ, फिर दूसरे ने एक और पुराण लिखा, फिर तीसरे ने कोई और पुराण लिखा। इसका मतलब ये है कि वो जो सत्य है उसके चारों तरफ तो घूमते रहे लेकिन सत्य नहीं रहा। अगर सत्य होता तो दूसरे व्यक्ति को दूसरी बार लिखने की आवश्यकता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 2 4 हो गए तो आप उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न उठाएंगे क्या? अगर आप कहें नहीं 4 नहीं कुछ और भी हो सकता है, तो बस कुछ और भी हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि वो सत्य से कुछ भिन्न होगा। तो इसलिए हमारी जो आर्य जाति है ये तो हमारा एक भौगोलिक पहचान है। हम पहले कभी आर्य कहलाते थे, फिर बाद में हम भरत खंड हुआ तो ये भारत कहलाने लगा, भारतीय कहलाने लगे। जब से मुगलों ने हमारे यहाँ पे आक्रमण करने आरंभ किए, सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम ने किया जो पहली शताब्दी में हुआ, तब उसने सिंधु के पार रहने वाले लोगों को उन्होंने ये हिंदू कहना शब्द प्रयोग किया। तो जो सिंधु और इंदु के बीच का जो स्थान है, इंदु कहते हैं सागर को, और सिंधु जो है वो भी एक बहुत बड़ी नदी है। तो सिंधु और इंदु के बीच का जो क्षेत्र है उसमें रहने वालों को उन लोगों ने ये हिंदू नाम दिया। तो हिंदू हमारे पुराणों में तो मिलता है लेकिन वेदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलता। तो हिंदू हमारी एक प्रकार की जीवन शैली है जो इस भूभाग के अंदर में धीरे धीरे विकसित हुई, और उसी के अंदर में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। ये जैन समाज से आरंभ हुआ और बाद में उसकी पुष्टि जो है वो बाकी अन्य लोगों ने भी करनी शुरू करी। और आज स्थिति क्या हो गई है, पिछले व्याख्यान में भी चर्चा आई थी कि सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है। मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि ईश्वर सगुण भी होता है, निर्गुण भी होता है। लेकिन हमारे समाज में आए एक प्रचलित मान्यता हिंदू समाज में क्या है कि सगुण का अर्थ है मूर्ति की पूजा करना साकार की, और निर्गुण का अर्थ है निराकार की उपासना। ये भ्रांति है, ये वैदिक मान्यता नहीं है, सनातन धर्म नहीं। तो इसलिए हिंदू और आर्य शब्द में अंतर है। अगर आप वेद की बात करें तो वैदिक होंगे, पुराण की बात करें तो पौराणिक होंगे।
पर हिंदू हम सब हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम ही हमारा बदला है। बहुत धन्यवाद। इसके बारे में, हेलो अनिल भाटे अगेन, इसके बारे में ज्ञानेश्वर का एक बहुत पुराना, बहुत वेल नोन ऐसा एक अंग है। वो ऐसा है कि तुझं सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदू रे, तुझं स्थूल म्हणू की सूक्ष्म रे, स्थूल सूक्ष्म एक गोविंदू रे, तुझं दृश्य म्हणू की अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंदू रे. So this is in Marathi, of course, but I think all of you must have No, understood absolutely the relevant. meaning. The words are clear. Yeah. So what is Jnaneshwar is saying here, as Dr. Vinod Deshmukh ji was talking about implicit and explicit, the purport of Jnaneshwar's Abhanga here is that the Brahman is beyond both the implicit and the explicit. So it is beyond the Saguna as well as Nirguna. It is beyond the Sukshma and Sthula. It is beyond the Drishya and Adrishya. So this is what Jnaneshwar is telling us. Thank you. I agree with that. I agree with that. और ये जो अंजलि जी ने जो प्रश्न उठाया, आज समय नहीं है, नहीं तो मैं इस विषय पे हिंदू में और आर्य में हमारे फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताने का, कभी भी अगर फिर व्याख्यान का अवसर हुआ तो बताने का जरूर प्रयास करूंगा। होते एक ही हैं लेकिन मान्यताओं में भिन्नता है। इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू नो। अवसर आया हिंदू और आर्य का विषय बताने का तो मैं वर्ण, जाति और कुल की बात भी बताऊंगा, जैसा उसके साथ में, yeah, I was going to say that we can also talk about varna, jati and all that, and its true meaning, yeah. And you already talked about what dharma means. That's the word, because it is misunderstood by dharma. So you really explained with last two lectures what dharma really means. You know, it is karma to dharma and dharma to karma. I think that is what we heard so much. So thank you everyone for joining. This is a great, I must thank Dr. Shri Gupta ji for this excellent presentation, last two presentations. We have learned a lot. There have been a lot of gaps between what we read, what we understand, what we practice. And so this has been, both these lectures have been very, very useful, and we'll arrange the third one, and then come to a kind of a view. I think we have to disseminate these messages to the rest of the world. So we should think about it. How do we do that? You see, whether we can bring out a 2-page document, to be widely circulated as to what we talked about. Maybe we should write to Narendra Modi ji, so that he will go everywhere. That this is what we talked about, and he's also talking about Vasudhaiva Kutumbakam these days and Vishwa Dharma and all that. But that's fundamental. It starts from Vedas, from the day. So it's so fundamental to our. So thank you everyone. Thanks once again, Gupta ji. I too would be failing in my duty if I don't express my gratitude to Dr. Anil Bhate, who has made me. No, I thank you very much. No, I don't thank him because he is the part of the group. Dr. Deshmukh, Dr. Bhate, I don't know whether Rajni is here. Rajni Zoglekar, Mahesh Patil, they all helped to get this organized. So they are all behind this. So thanks once again, everyone. Thank you once again, Gupta ji. Namaste, everyone. Thank you. Yeah. Namaste. Namaste. Thank you. Bye bye.